أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. صدق الله العظيم. اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو تو ان کا شمار نہیں کر سکو گے. بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آج سورہ نحل کی بہت ہی پیاری آیت کا ترجمہ جو بھی جس کی تلاوت بھی کی گئی اور پھر زبیر بھائی نے جس کا ترجمہ بھی پڑھا آپ کے سامنے. اور اتنی خوبصورت آیت جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم چاہو بھی کوشش بھی کر لو جو مرضی کر لو تم اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. اللہ پاک چاہے تمہیں اپنی دنیا کے خزانوں میں سب کچھ عطا کر دے تب بھی اللہ پاک کی بے انتہا نعمتیں ہیں جن کو نہ تم جان سکتے ہو نہ جن کا شکر ادا کر سکتے ہو. اور اللہ پاک اگر تم پہ دنیاوی نعمتوں کی برسات نہ بھی کرے ایون دین اللہ پاک کی بے تحاشا نعمتیں تم پہ ایسی ہیں جن کا تم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے. اور میرے خیال سے آج کے دور میں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے زبیر بھائی کہ ہم شکر ادا کریں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے جیسے جیسے سوشل میڈیا کا دور آ گیا ہے ایک کانسٹنٹ کمپٹیشن آ گیا ہے. ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کس کے پاس کتنا ہے, کون دن میں کیا کھا رہا ہے, کون سحری میں کیا کھا رہا ہے, کون افطار میں کیا کھا رہا ہے. تو وہاں پر ایک ایسا میں نے لوگوں میں دیکھا کہ لوگ بجائے کہ شکر کرے جو آپ کے پاس میسر ہے لوگ کمپٹیشن میں لگ گئے ہیں. بہت شکریہ مدیہ. میں آپ کو یہاں ناظرین ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ جب شیطان ابلیس جو ہے جب راندہ درگاہ ہوا, ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ مجھے تو مہلت دے میں اس آدم کو بہکاؤں گا. اس نے ایک بڑا جملہ جو بولا تھا نا, اس جملے میں ذرا غور سے دیکھنے کی بات ہے, سمجھنے کی بات ہے. اس نے یہ کہا تھا کہ میں جب بہکاؤں گا نا تو تیرا یہ جو بندہ ہے نا یہ تیرا شکر ادا نہیں کرے گا, تیرا ناشکرہ ہو جائے گا. اب ذرا غور کیجئے, شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں اگر بہکاؤں گا تو یہ نماز پڑھنی چھوڑ دے گا, میں بہکاؤں گا تو یہ روزہ رکھنا چھوڑ دے گا, حج کرنا چھوڑ دے گا, بلکہ کہا کہ یہ تیرا شکر ادا نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شیطان کا ٹارگٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے ناشکرے بن جائیں, اللہ کا شکر ادا نہ کریں. یہ ہے شیطان کا ٹارگٹ. اور آج ہم واقعی ایسا ہی دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, زکوٰۃ بھی دے رہے ہوتے ہیں, حج بھی کر رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, لیکن شکر گزاری ان کے لبوں پر نہیں آتی. وہ ہمیشہ شکایت اور ہمیشہ شکوے کے ہی اس میں رہتے ہیں. تو یہ دراصل شیطان کا ہتھیار ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے.
اس کا مطلب ہے کوئی بھی ایسا شخص آپ کے آس پاس جو ہر وقت who's complaining all the time، جو ہر وقت ناشکرا پن کر رہا ہے، ایک تو وہ نیگیٹو انرجی بھی ہے، دوسرا اس کو کٹائیں، کیونکہ وہ اگر اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو وہ انسان کا شکر ادا کرے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ تقی مہدوی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی نور رحمانی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ریلیجیس اسکالر بہن عائشہ بلال، اور بڑی نعت پیاری نعت خوان بہن ہمارے ساتھ جویریہ سلیمی موجود ہیں۔ آپ چار لوگوں کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو علامہ صاحب سوال ہی کرنا چاہتے ہیں، کتنا ضروری ہے شکر ادا کرنا اپنی زندگی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی وہ بھی بڑی پیاری آیت ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں اگر دیکھا جائے، بلکہ قرآن کا جب ہم پہلا صفحہ کھولتے ہیں تو اس میں کون سی آیت آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حمد اس خدا کی کہ جو رب العالمین ہے، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر سورہ رحمان کی جب ہم آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو ہر آیت کے اندر جب کسی نعمت کا ذکر ہوتا ہے تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اور جس نقطے کی طرف ابھی زبیر بھائی نے بھی اشارہ کیا کہ شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں عبادت سے روکوں گا یا میں سجدوں سے روکوں گا، نمازوں سے روکوں گا، میں شکر سے روکوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ عبادت کا مطلب ہی شکر ہے، کیونکہ سورہ دہر کے اندر بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے راستہ بتا دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ یا شکر گزار بندے بن جاؤ یا کفران نعمت کرنے والے بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں اسپرٹ جو عبادت کی ہے وہ شکر ہی ہے۔ جو ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ ایسے نہیں کوئی احسان کر رہے ہیں کہ ہم تو آگے خدا کی بارگاہ میں اور ہم نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، اب پروردگار کی ذمہ داری ہے کہ سجدے کے بدلے ہمیں جنت بھی دے، ہمیں نعمتیں بھی دے، اب پروردگار کے اوپر ہم احسان جتلا رہے، نعوذ باللہ۔ نہیں، پروردگار نے جو دیا ہے اس پر شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہی تو مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے شاہ فرمایا تھا کہ 3 طرح کے گروہ ہیں عبادت کرنے والے۔ ان قوما عبدوا اللہ رغبۃ فتلک عبادت التجار، وان قوما عبدوا اللہ رہبۃ فتلک عبادت العبید، وان قوما عبدوا اللہ شکرا فتلک عبادت الاحرار۔ ایک قوم وہ ہے جو عبادت اس لیے کرتی ہے تاکہ عبادت کرے اور جنت حاصل کرے، کہ یہ جو کام کرنے والا اور عبادت کرنے والا ہے یہ تو تاجروں والی عبادت ہے کہ میں کچھ دوں گا تو مجھے کچھ ملے گا۔ ایک وہ قوم ہے کہ جو عبادت اس لیے کر رہی ہے تاکہ جہنم سے بچ جائے، وہ بھی ٹھیک ہے عبادت کر رہی ہے، لیکن یہ عبادت وہ ہے کہ جو غلاموں والی عبادت ہے کہ آقا مارے گا اس لیے عبادت کر رہے ہیں۔ تیسری ہاں تو خوف کی عبادت۔ تیسری گروہ عبادت کا وہ ہے کہ جو شکر کے طور پر کہ اے خدا تو نے مجھے پہلے ہی اتنی نعمتیں دی ہیں، تو نے مجھے صحیح آنکھ دی ہے، صحیح زبان دی ہے، صحیح کان دی ہیں، اعضاء جوارح دی ہیں، مجھے جوانی دی ہے، مجھے طاقت دی ہے، مجھے زندگی دی ہے، میرے ماں باپ دیے، کتنی لاکھوں کروڑ نعمتیں ہیں، اور پھر ہر نعمت کے اندر بھی کتنی باریکیاں ہیں جن کا ذکر دعائے عرفہ کے اندر امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ مجھے وہ ناک دی ہے جس ناک کے اندر اگر وہ نظام نہ ہو تو میں سانس بھی نہیں لے سکتا ہوں، آنکھ ایسی دی ہے کہ جس کے اندر وہ اتنے وائرنگز اور اتنی ساری نسیں نہ ہوں تو میں اس آنکھ سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ذرا سی بھی اس کے اندر اگر کہیں پر کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی نقص آتا ہے تو کتنے کروڑوں دے کر پھر انسان اس چیز کو صحیح کروا سکتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ساری عبادتوں کا فلسفہ اگر شکر ہے تو کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان سختی کے اندر بھی آتا ہے، مشکلات کے اندر بھی آتا ہے کہ اس موقع پر شکر کرنا چھوڑ دے، نہیں، اس موقع پر بھی شکر کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پروردگار جانتا ہے کہ اس موقع کے لیے تمہارے لیے یہی چیز بہتر ہے۔ مثال کے طور پر میری زندگی کے اندر کرائسس آتے ہیں بھی فی الحال، قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ تم یہ سمجھ رہے ہوتے کہ تمہارے اندر کرائسس آ گئی ہیں، اب تمہیں جو ہے وہ خدا جو ہے عطا نہیں کر رہا، نہیں، تمہیں مضبوط کر رہا ہے، تمہیں کھڑا کرنا چاہتا ہے، تم سے اور زیادہ عبادتیں اور تم سے اور زیادہ کام کروانا چاہتا ہے، اس کے بعد جو تمہارا مقام مرتبہ ہوگا وہ تم اس کو دے کر خوش ہوگے۔ اس لیے اگر کوئی کرائسس بھی آ جائے اس موقع پر بھی اللہ کا شکر جاری رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ پروردگار مجھے بتا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ تو خدا نے جواب دیا کہ ایک پہاڑی کے پاس ایک خاتون ہے، وہ تمہاری جنت میں پڑوسی ہے۔ اب انہوں نے سوچا ہوگا کہ یقیناً ولی خدا ہوگی، بہت بڑی خاتون ہوگی۔ جب وہاں پر پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، بالکل ناتواں، کمزور، بینائی بھی نہیں ہے اس کے پاس، چلنے پھرنے کی بھی صلاحیت نہیں اس کے پاس۔ اب بہرحال جنت میں پڑوسی ہے تو جا کر کچھ گفتگو کرنا چاہیے، تو جب ان کے قریب جا کر بیٹھے اور گفتگو کرنا شروع کی تو کیا دیکھا کہ وہ ہر بات میں شکر خدا، شکر خدا، پروردگار تیرا اس پر بھی شکر ہے، پروردگار تیرا اس پر بھی شکر ہے۔ حضرت عیسیٰ سمجھ گئے
کہ اس کے اندر یہ جو صلاحیت ہے کہ اس کو خدا نے بظاہر کچھ نہیں دیا ہے، اس پر بھی جو شکر ادا کر رہی ہے، خدا کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ اور جب مشکلات کے اندر اگر انسان شکر ادا کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ خدا کے پاس یہ دنیا کا بھی اختیار ہے، اس دنیا کا بھی اختیار ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی چیز خدا نے ہم سے کم دی ہے یا چھینی ہے تو یقیناً اس کا کمپنسیٹ جنت کے اندر بہت بہترین انداز میں ہونے والا ہے۔ جی میں مفتی صاحب اس پہ آؤں گا کہ شکر سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں مزید دیتا چلا جاؤں گا۔ صحت کا شکر کرو گے تو صحت دوں گا، اور رزق کا شکر کرو گے تو رزق دوں گا۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے ذرا گفتگو کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کو اور کفر کو ایک دوسرے کی ضد کے طور پر رکھا ہے۔ ہم عام طور پر ایمان اور کفر کو ایک دوسرے کی ضد سمجھتے ہیں، لیکن یہاں شکر اور کفر کو ضد کے طور پر رکھا ہے۔ اس حوالے سے نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واشکروا لی ولا تکفرون، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں، شکر کے حوالے سے بہت پیاری گفتگو ہوئی۔ شکر نام ہے نعمت، تصور علی النعمہ، نعمت کا تصور، دل میں اس کا اعتراف کرنا، زبان سے اس کی تعریف کرنا، اور جوارح سے اس کا اظہار کرنا، یہ ہو گئی تعریف۔ آپ جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار، اعتراف، اکرام کرتے رہیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمت بڑھاتا چلا جائے گا۔ بڑا پیارا آپ نے سوال کیا کہ جو یہاں جو لفظ استعمال کیا شکر اور کفر کے حوالے سے، ولا تکفرون، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی، کفر کا معنی امام راغب اصفہانی نے المفردات کے اندر لکھا ہے کہ کفر کا یہاں جو معنی ہے، یا اوور آل جو ہے، حق کو چھپانا، انکار کر دینا، حق کو چھپانا یا انکار کرنا۔ رائٹ۔ سیکنڈ یہ ہے کہ جو شخص انکار کرتا ہے، کسان کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کافر، کہ وہ چھپاتا ہے زمین کے اندر، مفردات میں لکھا ہے کہ وہ بیج زمین میں چھپاتا ہے، چھپانے والے کو دراصل کافر کہتے ہیں۔ تو یہاں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمتیں دے رہا ہے، جو نعمت کا اظہار ہونا چاہیے تھا، یہ اظہار کو چھپا رہا ہے۔ اوکے، وہ دل میں اس نعمت کی جو اعتراف ہونا چاہیے تھا، اس اعتراف کو چھپا رہا ہے۔ تو یہاں یہ کفر کا معاملہ آ گیا، یہ معاملہ والا کفر نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پھر سورہ صافات کو پڑھیں، یا سورہ صاد کو پڑھیں، یا سورہ زمر کو پڑھیں، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شاہ فرمایا جو میرے قریب ہیں، میرے قریب وہ لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، شکر گزار بندے میرے قریب ہیں، اور وہ لوگ جن کو میں سخت ناپسند کرتا ہوں کہ جو ناشکر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ظاہری زندگی کو دیکھتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور کے بعد وصال جب کافی سارا کھانا رکھا گیا تو آپ رو پڑیں اور ہچکیاں بن گئی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا مجھے نبی علیہ السلام کے وہ ایام یاد ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایک روٹی پوری کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، تو آج اتنا کھانا دیکھا۔ پھر اس پہ نبی السلام کا کیا معاملہ ہوتا تھا کہ رات بھر آپ کھڑے ہو کر عشاء سے فجر گزارتے تھے، اور آپ کے پیر مبارک سوج جایا کرتے تھے، اور پھر اس پہ اللہ کے نبی فرماتے تھے عبدن شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بات یاد رکھیے گا، جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہیں، اور جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ ایک روایت میرے ذہن میں آتی ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ جا رہے ہیں، ایک شخص نے کہا، ابھی وہ آپ کو وہ بات تکفرون والی بات، ایک وہ کہا کہ اے موسیٰ آپ جا رہے ہیں، اور میرے پاس رزق کی تنگی ہوتی ہے، پروردگار عالم سے کہیں کہ وہ جو ہے وہ میرے لیے کچھ عطا فرمائیں، اللہ سبحانہ ایک ساتھ مجھے عطا کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ساتھ عطا فرما دیا۔ اب وہ بندہ لوگوں میں تقسیم بھی کر رہا ہے، اور جب تقسیم کر رہا ہے تو کہہ رہا پروردگار تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے اتنا عطا فرمایا۔ کئی سال کے بعد جب موسیٰ کلیم اللہ دوبارہ وہاں سے گزرے تو دیکھا فراوانی بہت زیادہ ہے، فراوانی اتنی زیادہ ہے۔ اب کہے پروردگار تو نے تو کہا تھا کہ اس کو ایک مرتبہ عطا کر دیں گے، اب میں دوبارہ واپس وہاں سے آ رہا ہوں، تو اس پہ اتنی نعمت۔ فرمایا موسیٰ تیرے جانے کے بعد وہ اتنا شکر ادا کر رہا ہے کہ ہر شکر پہ ہم اپنی نعمتیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نعمت مقید رہے، نعمت قید رہے، تو جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو آپ نعمت کو قید کر لیتے ہیں، اور جب آپ انکار کرتے ہیں تو پھر نعمت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے نعمت چلی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اس کو ابو داؤد میں فرمایا، معاذ بن جبل اس کے راوی ہے، اللہ کے نبی نے کہا اللہم اعنی
अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत। ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा तेरे जिक्र में, मेरी मदद फरमा तेरे शुक्र में। तो जो शुक्र अदा कर रहा होता है वो अल्लाह के भी करीब होता है, वो रसूल के भी करीब होता है। सुभान अल्लाह। हमारे साथ दिहाड़ी से कॉलर मौजूद है महमूना। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आपने मदीहा जाने ना उलमा से बात करनी है। जी जी बिल्कुल कीजिए। लेकिन ना परेशानी के लिए कोई वजीफा और घर में खैर बरकत के लिए कोई वजीफा पूछना है। अच्छा, सबसे पहले तो वजीफा, आज हम शुक्र की बात ही करें, ये हो गया। अच्छा बताइए, सवाल कीजिए। हाँ जी, पहले ना ज़हनी परेशानी के लिए कोई वजीफा पूछना है और दूसरा घर में खैर बरकत के लिए कोई वजीफा पूछना है। ठीक। अच्छा ठीक है, ठीक है। कोई खास पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो आप पूछना चाहें इसके अलावा? अच्छा बस ठीक वो है। कह रही है कि ज़हनी परेशानी है ज़हनी परेशानी और खैर व बरकत। हर लफ्ज़ पर, हर जुमले पर अगर ये कहें अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, तो ये सबसे अच्छा वजीफ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। तो मुश्किलात आसान होंगी। उसके अलावा अगर तंगी है रिस्क में, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी वजह से हमें कॉल करते हैं कि हमारे रिस्क में तंगी है, तो इसके लिए मैं सबसे अहम और अक्सर मैं ये वजीफ़ा बताती हूँ कि आप सूरह वाक़िया पढ़ें और फिर देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वहाँ से आपको रिस्क देगा जहाँ आपका वहम गुमान भी नहीं होगा। अच्छा, कोई अक्सर लोगों को जब सूरह बताते हैं कि आप सूरह वाक़िया पढ़ें तो कहते हैं हाँ ये तो हमें पता है इसके अलावा, लेकिन वो कर भी नहीं रहे होते। असल में वो उसका रूटीन में रखना बहुत ज़रूरी है। आप डेली पढ़ेंगे तब आप बरकत, क्योंकि आप जिस अल्लाह की नेमतें आपको मिल रही है ना, उन नेमतों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आजकल के इस दौर में जो जितना कंपटीशन आ गया है कि हम पहले इतना नहीं होता था, लोग कहते थे अच्छा आपका बच्चा कहाँ पे पढ़ रहा है, आप गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ पे जा रहे हैं, अच्छा आप लोगों की इस बार कितनी दावतें आई, अच्छा आप लोगों ने ईद पे कितने सूट सिलवाए, कहाँ से सूट सिलवाए। ये पहले ऐसी चीज़ें सुनने में नहीं आती थी। ये जो अब मुआशरे में कंपटीशन पैदा हो गया, एक सोशल मीडिया पे भी लोगों को आदत है कि अपनी हर चीज़ लोगों के सामने दिखानी, क्योंकि उनको लगता है कि शायद जितना हम दिखाएंगे लोगों को उतना पता नहीं सवाब मिलेगा या उतने मोतबर जाने जाएंगे। इस वजह से आपको क्या लगता है कि जिनके पास नहीं होता उनके अंदर नाशुक्रापन कितना आ गया, फिर वो लोग जो बार बार दिखा भी रहे हैं उनके अंदर कितना नाशुक्रापन है? नबी आखिर-उज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी का ढंग सिखाया और कहा कि हमेशा उन लोगों को देखो जो तुमसे नेमतों में कम है, उनकी तरफ ना देखो कि जो नेमतों में तुमसे ज़्यादा हैं। ये इसलिए ताकि तुम अल्लाह की जो नेमतें हैं उसका सही से शुक्र अदा कर सको। ये ज़ाहिर है कि उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, तो जिस हद तक हमारी कोशिश होती थी उस हद तक हम लोग एक दूसरे से कंपटीशन करते थे, चाहे वो घरों में हो या दीगर मामलात में हो। लेकिन अब चूंकि ज़ाहिर है हम देखते हैं हम माशरती तौर पर, तो इसलिए हर बंदे के अंदर ये होता है, देख कर दूसरे से हसद पैदा होता है, तो वो कहता है कि इसके पास है तो इसके पास से चला जाए और मेरे पास वो बच्चे जो ग्रीडी रॉकिम कहानी पढ़ते हैं। जी एक और कॉलर है हमारे साथ, हैदर अली हैं शायद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हैदर भाई, क्या सवाल है आपका? जी हैदर भाई, टेलीविजन की आवाज़ पहले बंद कर दीजिए। जी अब बताइए। जी मेरा सवाल ये है कि सर मैं जो भी काम करता हूँ ना, जिस तरह से हैदर भाई मुझे आपकी ना कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप टीवी से सुन रहे हैं। आप जो भी जितने भी हमें कॉलर्स कॉल कर रहे हैं प्लीज़ आप हमसे बात कीजिए, हम आपको जवाब देंगे। अगर टेलीविजन से सुन के बात करेंगे तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाएगा और आपको भी समझ में नहीं आएगी, हमें भी समझ में नहीं आएगी। अच्छा, आज हम शुक्र के वाले से बात अच्छा, हम अभी जो हमारी बहन ने सवाल किया था और जहनी परेशानी और बाकी खैर व बरकत और वज़ाइफ आप पूछते रहते हैं। वज़ाइफ बहुत सारे हैं, बहुत सारे हमारे स्कॉलर मुख्तलिफ दुआएँ बताते हैं। आप देखें कुरान मजीद की एक आयत है और वो बड़ी ऐसी आसान आयत है कि जो सबको याद है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। इस मुख्तसर सी आयत में आपने दुनिया के तमाम हसन मांग लिए, दुनिया की तमाम खैर आपने अल्लाह से मांग लिया, आखिरत का भी तमाम का तमाम खैर मांग लिया और आखिरत के जहन्नुम के अजाब से पनाह भी मांग ली। तीनों चीज़ें एक ही आयत के अंदर हैं। हम जितनी भी चीज़ें चाहते हैं, हम यही चाहते हैं ना, दुनिया में भी हमें बिल्कुल कामयाबी और कामरानी मिले, आखिरत में भी मिले और जहन्नुम के अजाब से भी निजात मिले। ये तीनों बातें इस आयत के अंदर मौजूद हैं। जी मैं इस पे ज़रा आऊँगा कि हमारे ये जो अभी जिस तरह इन्होंने बात की कि नेमत का जो इजहार है, जैसे फ़अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, तो अच्छा मेरा ख्याल में सवाल जो है आपकी तरफ छोड़े जा रहा हूँ, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है कि ये अगर मैं नेमतों का इजहार ना करूँ, फ़हद्दिस कहा गया, अगर ना करूँ तो इसमें भी कोई बुराई है? एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आकर इसी सवाल को कंटिन्यू करेंगे।
جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ماہ مہر میں تیری روشنی ہوئی ختم تجھ پہ پیمبری نہیں تجھ سا تیرے سوا کوئی کرے کون تیری برابری کرے کون تیری برابری یہ نہیں کسی کی مجال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ نہ فصیل ہے نہ محل سرا تیرا فرش ہے وہی بوریا تیرے جسم پاک پہ ایک قبا وہ بھی تار تار ہے جا بجا وہ بھی تار تار ہے جا بجا تیری سادگی ہے کمال ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہیں۔ بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور کیونکہ آج ہمارا جو شو ہے وہ شکر گزاری کے حوالے سے ہے، تو اور جب آپ اہل بیت کے ماننے والے ہوں تو انہوں نے تو وہاں پر شکر ادا کیا جہاں پر صبر کرنا بھی مشکل ہے، تو یہ سنت ہے۔ جیسے ہماری بہن کی کال آئی تھی، بڑی پریشان تھی، تو آپ چاہے جتنی بھی پریشان ہو، آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو آزمائش دی ہے۔ یہ سنت اہل بیت ہے، تو اہل بیت یہ پھر جو ہے وہ اس کا صدقہ اور اس کی آپ کے لیے اجر کی آپ کے لیے اللہ سے دعا کریں گے۔ آپ نے سوال کیا؟ جی، میں نے سوال یہ کیا تھا صاحب کہ یہ جو کوئی نعمت ہے، اگر میں اس کا اظہار نہ کروں، نعمت کا شکر ادا کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ اس کا اظہار کرنا؟ وہ اما بنعمت ربک فحدث کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اہم نقطہ ہے۔ کبھی کبھار ہم کچھ آیات کا سہارا لے کر اپنا مطلب اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اس مفہوم کا یہ مطلب لیں کہ اس آیت کے مفہوم لیں کہ جو بھی خدا نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، جو بھی آپ کو جاؤ حشم دیا ہے، اس کا اظہار لوگوں کے سامنے کریں اور اپنی بڑائی ظاہر کریں، تو سب سے زیادہ اگر کائنات میں سجدہ تھا یہ کام تو حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ تھا، کہ جن کو واقعاً سردار کائنات بنایا ہے۔ لیکن واقعات متعدد ہیں۔ ایک کافرہ خاتون آتی ہے اور کہتی ہے کہ اے محمد، تم زمین پر ایسے بیٹھے ہو کہ جیسے غلام بیٹھتے ہیں۔ تو آپ نے بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ نہیں میں تو نبی خدا ہوں، میں تو سید الرسول ہوں، میں تو افضل البشر ہوں، یہ کہنے کے بجائے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ کائنات میں مجھ سے بھی بڑا کوئی غلام ہو سکتا ہے۔ تو کتنا پیارا انداز ہے آپ کا کہ بجائے اس کے کہ کسی نے کوئی آپ کو تنبیہ کیا ہے یا آپ سے مخالفت اختیار کی ہے، آپ اس جملے کو بھی اس معنی میں استعمال کر لیتے تھے کہ جو خدا کے سامنے بندگی کا اظہار ہو، خضوع و خشوع ہو۔ یہی انداز ہمیں مولا متقیان کے اندر بھی نظر آتا ہے کہ آپ کو غدیر کے میدان میں نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، علی بن ابی طالب مولا ہیں۔ لیکن جب پروردگار کے سامنے آتے تو کیا کہتے ہیں؟ مناجات امیر المومنین ہے مسجد کوفہ کے اندر فرماتے ہیں مولا یا مولا انت المولا وانا العبد،
وَهَلْ يَرْحَمُ الْعَبْدَ إِلَّا الْمَوْلَى، اے میرے مولا، اے میرے مولا، تو مولا ہے، میں تو تیرا بندہ ہوں، اور کون اپنے بندے پر رحم کر سکتا ہے سوائے اس کے مولا کے۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ کو وہ واقعہ بھی نظر آتا ہے کہ جب آپ کی شہادت ہو گئی اور حسنین کریمین واپس لوٹے اور ایک بوڑھے کو دیکھا کہ جو پریشان تھا، اسے سوال کیا کیا تیری پریشانی ہے؟ تو کہا کہ 3 دن ہو گئے، نہ جانے ایک میرا دوست تھا، وہ آیا کرتا تھا میرے پاس، باتیں کیا کرتا تھا، اب وہ نہیں آیا میرے پاس، میری کون سی ایسی بات اس کو بری لگ گئی؟ تو سوال کیا کہ اس کا نام بتائیے، ہم اس سے ملاقات کروا دیتے۔ کہا میں نے کئی مرتبہ نام پوچھنے کی کوشش کی، تو وہاں پر بہت اچھا موقع تھا مولا کے لیے کہ بتا دیتے کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں جو تیرے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، نہیں بتایا نام۔ کہا جب بھی میں نے نام پوچھا ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں عبد خدا ہوں، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ تو کہا کہ اچھا تو نے دیکھا تو ہوگا کہ اس کی شکل و شمائل کیا ہے، ہم اس کو تلاش کر کے لے کر آئے تھے۔ کہا کہ میں بچوں میں نابینا ہوں، میں صحیح طریقے سے دیکھ نہیں پایا اس کو۔ تو کہا کہ پھر ہم کیسے تلاش کریں گے؟ کہا جب بھی وہ میرے ساتھ بیٹھتا تھا نا، ایک جملہ کہتا تھا، وہ کہتا تھا مسکین جالس مسکینا وغریب جالس غریبا، ایک مسکین دوسرے مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے، دوسرا ایک غریب دوسرے غریب کے ساتھ بیٹھا ہے۔ تو یہ جملے سن کر امام حسن امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا یا شیخ ہوا ابونا علی بن ابی طالب، اے شیخ وہ ہمارے بابا علی بن ابی طالب علیہ السلام تھے جن کو ابھی ہم دفنا کر آ رہے ہیں۔ تو ان کو اتنی زیادہ نعمتیں خدا نے دی ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا کے سامنے بھی عاجزی اور انکساری، اور لوگوں کے سامنے بھی عاجزی اور انکساری، اور اپنا تعارف نہیں کروایا۔ پھر یہ بات کس کانٹیکس کے اندر ہے؟ پھر یہ بات اس کانٹیکس کے اندر ہے کہ جہاں پر آپ کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، آپ کے الہی عہدے کو کوئی نہیں جانتا، جہاں پر کوئی آپ کو جو آپ کو خدا نے منصب دیا اس کو کوئی نہیں جانتا، تو وہاں پر رسول خدا نے اپنا تعارف کیا کہ انا خاتم النبیین، انا رسول اللہ۔ اسی طریقے سے حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انا وصی رسول اللہ۔ عاجزی اصل میں سب سے امپورٹنٹ ہے۔ جی بالکل، خدا کے سامنے بھی اور بندوں کے سامنے۔ ایک کالر لے لیں ہم۔ جی السلام علیکم۔ جی آئی خان سے آ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا سوال؟ جی میرا سوال ہے امتحان میں کامیابی کے لیے کرنا تھا۔ ہلو جی زارا۔ جی وہ امتحان میں کامیابی کے لیے وظیفہ پوچھنا تھا پڑھنے صاحب سے۔ امتحان میں کامیابی کا وظیفہ، جی مفتی صاحب آپ بتا دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ اسی طرح ایک بچہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہنے کا حضرت امتحان قریب ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔ ابو نے کہا بھائی تم ایک کام کرو، 1.25 کروڑ مرتبہ نا سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ 1.25 کروڑ مرتبہ؟ کہا بیٹا جو پڑھنا ہے وہ پڑھو نا۔ بھئی آپ کا فزکس کا پیپر ہے، آپ کہہ رہے ہیں وظیفہ، آپ کا کیمسٹری کا پیپر آپ کہہ رہے ہیں وظیفہ، اناٹمی کا پیپر ہے آپ کہہ رہے ہیں وظیفہ، فزیولوجی کا پیپر ہے آپ کا وظیفہ۔ سب سے بڑا وظیفہ یہ کہ جو آپ کا پیپر ہے اس کو سمجھ کر پڑھیں، تاکہ آپ قوم و ملت کی اور آپ اسلام کی ترقی کر، یعنی کہ سوری اس کا خدمت کر سکیں اور آپ کسی کے لیے نافع بن سکیں۔ لیکن کوئی ایسا اللہ پاک کا نام جس سے آپ کے دماغ کی وہ کیپیسٹی رب زدنی ایک علما۔ تو ربی زدنی علم ہے، دوسرا یا فتاح یا قوی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام یا فتاح یا قوی، یا فتاح یا قوی۔ ہاں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے کہتے تھے بیٹے جب تم کوئی پیپر یاد کرو، سبق یاد کرو تو 11 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھو۔ تو میں 11 مرتبہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا تھا اور پھر اپنا سبق یاد کرتا تھا، تو الحمدللہ اس درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ معاملات کو حل فرماتے ہیں۔ لیکن آگے والد صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا۔ مجھے پتا ہے جیسے ابھی علامہ صاحب نے بات کی ہے تو، اور اس میں جب امام مطلقین کو شہید بھی کیا گیا تو جب ان پہ ضربت لگی تھی تو انہوں نے کہا تھا فزت برب کعبہ، سو کیا یہ بھی شکر کی فارم ہے؟ یہ بھی انہوں نے اللہ کی طرف سے دیکھا تھا، شکر ادا کیا اللہ کی۔ ان کے بیٹی کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شکر ہے نا کہ جب علی اصغر کا خون وہ آسمانی دنیا پہ اچھال کے کہتے ہیں کہ پروردگار میں تجھ سے راضی ہوں، تو یہ راضی ہونا، یہ رضا ہونا، یہی تو شکر کے معاملات ہوتے ہیں، جس طرح بھائی بات کر رہے تھے۔ اچھا یہاں اعتراف والا معاملہ جو فحدث دیکھیں حضرت نے بیان کیا، میرے ذہن میں ایک خیال اور بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس کی نعمت کا اظہار دیکھ کر خوش ہوتا ہے، تو کہیں کہیں اظہار نعمت کرنا اس کو راضی اور اس کی طرف شکر کرنے کی ایک دلیل بن جاتا ہے، لیکن وہ نعمت، وہ اظہار نعمت اس کی رضا کے لیے، اظہار نعمت ایک علیحدہ چیز ہے اور اظہار نعمت تکبر کی وجہ سے ہونا یہ علیحدہ چیز ہے۔ یہ گھڑی اگر میں اس لیے پہنوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نعمت کے طور پہ دیے، یہ 5 کروڑ کی بھی ہو تو یہ عبادت بن جائے گی، اور یہ دکھاوے کے لیے 50 روپے کی بھی ہو تو باعث عذاب بن جائے گی۔ یعنی آپ کا زاویہ، آپ کی سوچ، جو شکر ادا کرتا ہے وہ پازیٹیو تھاٹس کا حامل بن جاتا ہے، اور جو
नाशुक्रापन होता है उसमें नेगेटिविटी आती है, और हम जानते हैं तो नेगेटिविटी जितनी है वो इब्लीस की तरफ है। और शुक्राना, शुक्र अदा करना, जिसे एक अल्लाह के वली थे वो ये दुआ करते थे, परवरदिगार तूने मुझे बहुत अता कर दिया, आय अल्लाह मुझे इतना मत अता फरमा, आय अल्लाह मेरी औकात से ज़्यादा बढ़ चुका है। एक दिन तहज्जुद के वक्त एक इल्हामी कैफियत हुई, कहा बंदा खुदा तू जिस तरह ये दुआ मांगता रहेगा और मेरी नेमतों पे आजी करता रहेगा, मैं तुझ पे अपनी नेमतें बढ़ाता चले जाऊँगा। अगर तू चाहता है कि ये नेमतें ख़त्म हो जाएँ तो फिर नाशुक्रा बन जा। कहा परवरदिगार नाशुक्रा नहीं बन सकता, मैं तेरी किस नेमत पर नाशुक्र करूं। देखने के लिए ये आँख पैदा होते ही हमें अल्लाह ने दे दी, देखने की हमने मांगा था, सुनने के लिए कान दे दिए, मांगे थे, बोलने के लिए कान। इस वाक़े में एक चीज़ मुझे कुछ अजीब सी लग रही है कि हम ये कैसे कहें कि अल्लाह तूने मुझे बहुत तूने दिया, अब इतना ना दे मुझे, ये हम नहीं कह सकते। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कैफियत में होते हैं ना, ओके एक कैफियत हो जाती है कि परवरदिगार तूने बहुत फरमा दिया, ऐसा नहीं कि मैं दूसरी तरफ निकल जाऊं। अच्छा कुछ लोगों की कैफियत अलग है, जैसे मूसा कलीमुल्लाह जा रहे हैं, एक शख्स कह रहा परवरदिगार मिल जाए तो मैं उसके बाल बनाऊंगा, इस्लामी रवायत के अंदर। ज़ुबैर भाई मैं इसके अंदर एक वाक़े का भी सहारा लेना चाहूँगा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी आते हैं इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की खिदमत में और कहते हैं कि फर्जंद रसूल मेरा सलाम कबूल कीजिए क्योंकि रसूल खुदा ने आपकी खिदमत में सलाम पहुँचाया था। फिर इमाम बाक़र ने सवाल किया कि जाबिर तुमने सोबत रसूल इख्तियार की है, बताओ तुम्हारे ईमान की क्या कैफियत है। तो कहा मेरे ईमान की अब ये कैफियत हो गई है कि मैं बीमारी को फ़ौक़ियत देता हूँ सब्र सेहत के ऊपर, और मैं बुढ़ापे को फ़ौक़ियत देता हूँ जवानी के ऊपर, और मैं गुर्बत को फ़ौक़ियत देता हूँ अमीरी के ऊपर। तो इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि ये काम क्यों करते हो। कहा इसलिए कि जब इंसान बीमार होता है ना खुदा से ज़्यादा करीब होता है, जब गरीब होता है तो खुदा से ज़्यादा करीब होता है, जब बूढ़ा होता है तो खुदा से ज़्यादा करीब होता है। तो इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है कि ये इस तरीके से इंसान करीब तो हो जाता है, लेकिन ज़्यादा इसमें बड़ा ईमान का पहलू ये है कि खुदा अगर नेमत दे तब भी खुदा के साथ लौ लगाओ और खुदा की नेमत का शुक्र अदा करो, और खुदा अगर मुसीबत में रखे तब भी खुदा को फरामोश ना करो और खुदा के साथ लौ लगाओ। तो दोनों हालतों के अंदर खुदा का शुक्र अदा करना और अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन ये जारी रखना जरूरी है। ये असल ईमान के अच्छा यहाँ मैं एक बात कंप्लीट कर दूं तो गलत मैसेज चलेगा ना, जिस तरह आपने कहा। देखिए मैंने आपको ये बताने का मकसद था कि एक वाक़या था, यहाँ ये वाक़या बताने का मकसद ये था कि उस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नेमतें उसके इजहार नेमत पर, उसकी एहसास नेमत पर थी। तो यहाँ ये बताना है कि अगर कोई नाशुक्रा बंदा होता है तो वो नेमतें उससे ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। पैसा होता है मगर बरकत नहीं होती, सेहत होती है मगर बीमारी के मामला बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं, औलाद होती है नाफरमान। वैसे वो कि जैसे इंसान पता है कि आप कितने गुनाहगारों कहते हैं अल्लाह पाक मैं तो तेरी नेमतों को लाइक, वो शायद वो पशेमानी वाली कैफियत कि अल्लाह पाक मैं कहाँ इस काबिल और कहाँ तेरी नेमत है। अच्छा मैं दुआओं में कितना ज़रूरी है कि हम ये शुक्रगुजारी मांगे, क्योंकि देखिए हम शुक्र कैसे करना है उसकी तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जिसको नहीं भी और वैसे अपनी दुआओं में मामूल बनाए कि अल्लाह पाक हमें शुक्रगुजारी की आदत डाले, ये कितना ज़रूरी है। देखिए मदिहा, एक तो ये चीज़ हम समझ लें कि जो शुक्र अदा नहीं करता ना, जैसा कि कायदा है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करो तो मैं तुम्हें ज़्यादा बढ़ा के दूंगा। और अगर तुम शुक्र नहीं करते हो तो फिर उसका नतीजा क्या है, शुक्र ना करने का नतीजा क्या है कि जो नेमतें अल्लाह ने आपको दी है ना उनमें कमी आना शुरू हो जाती है। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत, ये आसान सी एक दुआ है जिसे अगर हम शामिल रखें। इसी तरह से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अच्छे मामलात या ऐसे मामलात जो सख्ती वाले मामलात हों, इवन कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से लौटे हैं और नालैन जो है वो खून में तर है, ठीक है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में बैठे हैं और बाग में कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ली हाल, ऐ अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस बात पर कि तू मुझसे राज़ी है। तो हर ज़िंदगी के शोबे में सिर्फ इतना ही कह लेना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि मोमिन की शान कैसी है कि जब उसके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो सब्र करता है, और जब उसको नेमतें मिलती हैं तो वो उस पर शुक्र अदा करता है। अगर हम शुक्र अदा करते हैं ना तो ये जहन में रखिएगा कि हम बहुत सारी चीज़ों से, बीमारियों से, मुश्किलात से बच जाएंगे। ये सब्र और शुक्र दोनों एक साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। सब्र जो है ना आपको उस वक्त करना पड़ता है जब आपके ऊपर मुश्किल है, और शुक्र आप कब करते हैं जब आपको अल्लाह ने आंखें दी हैं। ये आईलेट है ना, ये बिल्कुल पलकें हैं हमारी, कितनी बड़ी नेमत है। आईलेट ही नहीं होती है आपके पास की पाक ज़ात पे, तो आप मोमिन की निशानी बता रहे हैं वो अहले बैत की कि उस वक्त शुक्र कर रहे हैं जब सब्र करना मुश्किल। जी बिल्कुल ऐसा ही है, उस वक्त शुक्र अदा करते हैं। उनको हमें कितना यहाँ पे देखना चाहिए।
اہل بیت کی تو زندگی ہمارے لیے ایسا ہے کہ اگر آپ نے اس کو تھام لیا نا تو زندگی بہت آسان ہو سکتی ہے. اسی طرح سے میں ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کروں گی. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا. آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بیمار ہو گئے, پتہ نہیں کب ٹھیک ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو وہ بہت بیمار تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری کو ختم کیا اور پھر اسے نعمتیں دی. اب جب بھی آپ کے پاس کوئی نعمت آتی ہے نا تو یہ نعمت آپ کے لیے آزمائش ہے کہ آپ اس نعمت کا کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. اب اس کے بعد ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے یہ مال دے دو. اس نے جواب دیا یہ مال میں کیوں دوں, یہ تو میرے باپ دادا سے میرے لیے وراثت میں ملا تھا. اس نے شکر ادا نہیں کیا. تو فرشتے نے کہا کہ اگر تو سچ کہتا ہے, اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو تجھ سے یہ تمام مال تیرا رب تجھ سے چھین لے. تو اللہ نے دوبارہ اس کے بیماری کو بھی طاری کر دیا اور کنگالی کو بھی طاری کر دیا. آج کا مسلمان اگر اپنی زندگی میں, ہم بہت ساری کالز لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے, یہ معاملہ, یہ معاملہ. میں کہتی ہوں, اور میں اپنی زندگی کا اگر بتاؤں مدیحہ, پہلے میں یہ سوچتی تھی فلاں اتنا کامیاب, فلاں اتنا کامیاب, انسان سوچتا ہے. لیکن جب سے میں نے یہ سوچنا شروع کیا نا کہ اللہ نے مجھے کتنی نعمتیں دی ہیں, کہ مجھے کتنا میرے رب نے نوازا, کہ مجھے ہر چیز دی ہے, اس وقت سے جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا انزائٹی, ڈپریشن, آپ نے جس وقت شکر خدا کرنا شروع کر دیا نا, اس وقت آپ ڈپریشن, انزائٹی, ساری چیزوں سے باہر آ جائیں گے. کیونکہ اب آپ کا تعلق آپ کے رب سے استوار ہے, آپ کی باتیں آپ کے اللہ سے ہو رہی ہیں. اب آپ کو دنیا والے کچھ بھی نہیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ ساری چیزیں فنا ہو جانی ہیں اور پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. تو پھر آپ دوستی کر لیتے ہیں اللہ سے, اور اللہ سے دوستی کرنے کا سب سے آسان طریقہ شکر ہے. شکر ہے, کتنی پیاری بات ہے. اچھا ایسے میں زبیر میں بتائیں, ان لوگوں کو بتائیں وہ جن لوگوں کے پاس اللہ پاک نے تمام نعمتیں دی لیکن پھر بھی خوش ہیں, نہیں بس گھر میں صرف 2 ہی گاڑیاں کھڑی ہیں, نہیں بس ہم نے ایک ہی جوڑا بنا. ایسے لوگوں کے حوالے سے بتائیں نا کہ کیا یہ ظاہر ہے کہ ناشکرے پن کی انتہا ہے. اور میں چاہوں گا کہ بہت مختصراً آپ دونوں حضرات اگر ایک مختصراً اگر ون لائنر اگر آپ ہمارے ناظرین کے لیے اس ٹاپک پر خاص بتا سکیں. ون لائنر ایک بہت خوبصورت جملہ ہے جو میں بار بار دہراتا رہتا ہوں, میری زندگی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے. وہ یہ ہے کہ اپنی باطنی زندگی کو دوسروں کی ظاہری زندگی کے ساتھ مقایسہ نہ کرو. نہیں معلوم کہ ان کی باطنی زندگی کتنی سخت چل رہی ہے اور تمہاری ظاہری زندگی کتنی اچھی چل رہی ہے جس پر لوگ رش کر رہے ہیں. اس لیے اپنے اندر کی جو باطنی زندگی ہے اس کا مقایسہ لوگوں کی ظاہری زندگی کے ساتھ نہ کرو. حدیث کی طرف جاؤں گا کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو اور دینی معاملات میں ہمیشہ اوپر کی طرف دیکھو. اور زبان کا جہاں حق ہے وہاں استعمال کرو, جہاں آنکھ کا حق ہے وہاں استعمال کرو, جہاں کان کا حق ہے وہاں استعمال کرو, اور دل کو اللہ کی یاد سے معمور کرو. یہی شکر کی کیفیات میں بنے گی. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا, آپ نے وقت نکالا. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. عائشہ آپ کا بہت بہت شکریہ. جویریہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. اور مدیہ مزید کچھ کہنا چاہیں؟ میں تو جناب جس جانب سے شکر ادا کرنا چاہوں گی کہ اللہ پاک نے آج سے ویورز دے اور ایک اتنا اچھا پلیٹ فارم دیا رمضان المبارک میں کہ جہاں پر ہم یہ بات کر سکتے ہیں, اور یہ ہماری عبادت کا حصہ ہے جو ہم ذکر کرتے ہیں, رسول کا ذکر کرتے ہیں, اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. آف کورس کوئی بھی ڈسکشن چل رہی ہے عبادت میں کنورٹ ہوئی جاتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमारे स्टूडियो में लाइफ बॉय का एक नया वेरिएंट है, बहुत ही ज़बरदस्त है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और ये हार्श भी नहीं है, आपकी स्किन को डैमेज भी नहीं करता है। तो इसलिए अपने किचन में रखें लाइफ बॉय ताकि आप रहें सेहतमंद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक, आप सुनाएं? ठीक बस ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या हो रहा है भाई? माशाल्लाह से रोजे आगे बढ़ते जा रहे आगे हैं। बढ़ते जा रहे हैं और टाइम बड़ा कम रह गया है और मुझे लगता है रमजान इस बार बहुत छोटा था, बहुत छोटा था। हमेशा ये लगता है हम लोगों को, हाँ, चाहे इतना बड़ा रमजान हो या इतना सा हो, मुझे लगता है बस हमारा जोश जो होता है ना वो हर चीज को जो है वो हम पूरा लोग कर देता है। जब से बड़े हो गए हैं ना और जब हम मैच्योर हो गए हैं और फिर हम अपनी अम्माओं के प्रो से अब रमजान मना रहे हैं तो हमें लग रहा है कि भाई अब रमजान छोटा है क्योंकि बस करना कुछ बहुत है, इबादतें बहुत ज्यादा करनी है लेकिन टाइम बहुत कम है। हाँ। अच्छा, आज हम बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी और रेसिपी है हमारे खट्टे आलू। मेमनी स्टाइल में हम बनाएंगे क्योंकि लोगों को बहुत पसंद है। आपने मेमनी स्टाइल के वाले से बात की तो भाई जवेरिया को भी भेज दीजिएगा, जवेरिया नमाज ब्रेक पे। हाँ। तो उससे ये होता है कि रोजाना छोले दही बड़े पकौड़े हम खा रहे होते हैं अफ्तार पे, लेकिन ईद पे हमें कुछ चीज यूनिक रखनी होती है, थोड़ी सी भी हो, अच्छी भी हो, झटपट से भी बन जाए, आलू भी खराब नहीं होते हैं तो आप बॉईल करके रख सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने लेना है तलो ऑयल और आपको पता है कि ये माओं का जो है वो मन पसंद है क्योंकि इसमें विटामिन ए और विटामिन डी दोनों मौजूद हैं। ठीक है, ये रहा। आपने इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून ये करिए। समिया, मुझे इंग्रेडिएंट्स कुछ ऐसी नहीं लग रही कि जो स्पेशली आज हमें बाजार से जाके लेकर आनी पड़े। तो ये सब वो चीज़ें जो घर में हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है, सारी चीज़ें इसी तरह की होती हैं कि आपको आसानी हो और आप जल्दी जल्दी से वो चीज़ें सारी बना सकें। अगर आपके पास घर में चीज़ें नहीं होंगी तो फिर आपको जो है वो बाजार जाना पड़ेगा। हाँ। और ईद पे भी यही होता है कि हम जितना भी सामान मंगा लें कम होता है। हाँ, ट्रू। तो अब सबसे पहले हमने हल्का ऑयल को गर्म करना है, इसमें हमने प्याज शामिल करनी है। ठीक है, प्याज के साथ ही साथ आराम से आज बनाएंगे, आज हमारे पास टाइम है, आज हम कोई परेशानी नहीं करनी। हाँ, ये हम आज हम पे कोई प्रेशर नहीं है अभी तक नहीं है। इंटरव्यू के आज इसका मैं कुछ नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्याज को थोड़ा सा करना है लाल और ये बहुत ज्यादा लाल नहीं कि हमें सालन नहीं बनानी है, हमें इसको एक स्नैक की तरह रखना है तो ये हल्का सा पिंक कलर हो जाए। ठीक है, अब आपने इसमें शामिल करना है, ये थोड़ा सा पन जाए, हल्का सा ये गर्म हो जाए तो फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और बाकी के लवाजमात ऐड करेंगे। जब तक मैं बता दूं कि यहाँ पे ये रहे आलू, इसको मैंने हल्का सा नमक डाल के बॉईल किया है और इसके तकरीबन 1:4 या 1:6 जो है वो आप इसके पीसेस कर सकते हैं आलू के साइज के हिसाब से। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, छोटे आलू लेते हैं। छोटे आलू ये होते हैं कि जब सर्दियां आना शुरू होती हैं तो वो नए आलू होते हैं, बेबी पोटैटोज, तो उसके साथ बनाते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो आप नॉर्मल आलू के साथ भी ये सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ आलू की तो मुझे खुशबू बहुत अच्छी लगती है भाई, पता नहीं बाकी भी यार मुझे दिमागी को मसला है या सच में आलू की अच्छी खुशबू अच्छी होती है। लेकिन मैंने कभी किसी के मुंह से सुना नहीं कि आलू की खुशबू अच्छी आ रही है, तो मुझे फील होती है आलू की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छा लगता है, मतलब अगर अच्छे से उबले हुए हों और नमक वाले आलू ना तो फिर उसकी स्मेल आती है। अच्छा, यहाँ पे ये हल्का सा फ्राई हो रहा है, इसके हल्के से बबल्स आ जाए, पिंक कलर का हो जाए तो फिर हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। ठीक है, जब तक ये हो रहा है तो हम अपनी ड्रिंक की तरफ आ जाते हैं। आज क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास ड्रिंक के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद है, बट स्टिल हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम AI किनौर को पे जाते हैं, वहाँ पे हम रेसिपी को चेक करते हैं कि अगर कोई अच्छी रेसिपी मिल जाए तो हम ज़रूर बनाते हैं। तो आज हमारे पास ये देखें कुछ चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं और AI ऐप ने हमें बताया 2 रेसिपीज़, यानी कि एक हमें बताया है इन्होंने कि हम प्रोटीन शेक बनाएं यहाँ पे जामे शीरी के साथ, और दूसरी हमें रेसिपी बताइए कि हम 7 अप के साथ जो है वो बहुत ही अच्छा सा जो है वो एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जामे शीरी का, जिसको इन्होंने रोज फ्रिजी ड्रिंक बोला है। तो हम 2 ड्रिंक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे ये बिल्कुल ही कलर चेंज हो गया है। इस दौरान आपने यहाँ पे थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। ठीक है, साथ ही साथ आप इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। ठीक है, ये हो गया टमाटर। यहाँ पे आपने लाल मिर्च पाउडर यूज़ करना है हस्बे जायका, जैसे आपकी फैमिली को पसंद हो। ये हमने शामिल किया। यहाँ पे थोड़ा सा हम डालेंगे कड़ी पत्ता। ठीक है, ये लाल हो गया। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, नमक हस्बे जायका। जीरे पाउडर की कितनी अच्छी खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू आती है। लेमन जूस,
ये हमारे इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो गए। आखिरी में फिर हम इसमें हरा धनिया और इमली का रस शामिल करके इसको सौते करेंगे। ठीक है, ये हल्का सा जब टमाटर बिल्कुल बुझ जाएगा, पेस्ट बन जाएगा, तो फिर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। लेकिन जब तक हम लोग जो है वो रोज फ्रिजी ड्रिंक के हवाले से आते हैं, यहाँ पे हमारे पास जामे शीरी मौजूद है, ये हम इसमें शामिल कर रहे हैं। कितना आसान होगी ज़िंदगी। और जामे शीरी की तो क्या बात ही, ढक्कन खोलो तो उसकी खुशबू इतनी खूबसूरत, इतनी रिफ्रेशिंग सी होती है, तभी तो कहते हैं लाइट लाइट रिफ्रेशिंग फर्श जामे शीरी। और अच्छा, आजकल ना वैसे मैं एक बात बताऊं, क्योंकि देखें हम खुद वर्किंग मदर्स हैं ना, हम खुद भी काम करती हैं, ठीक है, घर में बच्चे भी हैं, घर भी सब देख रहे होते हैं, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं अगर आपके पास ऐसी हाफ कुक चीज़ें। अच्छी बात मुझे लगती है कि मार्केट में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। पहले तो चले मतलब घर की जो ख़वातीन होती थी तो आपके पास टाइम है, आप मसाले खुद निकाल रही हैं, खुद उसको कूट रही हैं। अब हम जो सारा दिन गुजार के जो सजी जो घर जाते हैं तो हमारे में कितनी एनर्जी बचती है। बिल्कुल। अच्छा, इस वक्त हम इसके अंदर थोड़ा सा 7 अप वो हम ऐड करेंगे ताकि ये ड्रिंक बड़ी अच्छी हो जाए। थोड़ा करना है ताकि हमारे पास एक पेस्ट सा बन जाए। ठीक है, मेरे को पैर ही पूरा घूम रहा है ये आज अब ये नेक दिन है, मैं पूछ भी सकती हूँ, मुझे बताएं ईद के कपड़ों की तैयारी आपकी हो गई है? बस ऑलमोस्ट चल ही रही है इंशाल्लाह ताला। बेटा और बेटी की आपने कर ली तैयारी? बेटे का हो गया है, बेटी रह गई है अभी। मुझे बताएं आप लोग वैसे ईद पे क्या करते हैं कि आपके सबके कपड़े मैचिंग होते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। हम सब को जो अच्छा लगता है, पहले होता था जिमल और मैं ट्यूनिंग करते थे, बच्चे तो नहीं, फिर उसके बाद हमदान और जिमल की हमने ट्यूनिंग कराना शुरू कर दी। तो लेकिन अब ये है कि देखिए बच्चे इनके आपस में ट्यून्ड हैं, ये ट्यूनिंग की बात कर रही हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, तो फिर अच्छा अब आप चारों एक जैसे कपड़े नहीं पहनते? नहीं, बहुत कम होता है, रेयर है। अच्छा, मुझे वैसे ना अब जाहिर खैर चलो 4 साल का हो गया है, तो मुझे होता है कि मैं फैसल और जाहिर जो हमारे चारों, अक्सर लोग मेरी दोस्त से मजाक भी उड़ाती हैं, तो वो कहते भी कि एक थान से बना लें, लेकिन मुझे से कलर कोऑर्डिनेटेड हो। लेकिन इस रमज़ान में इतने फ्री थे कि मेरे कपड़े भी अभी ऐसे नहीं हुए, मेरे बेटे के भी नहीं और मियाँ के भी नहीं। अच्छा, एक और बड़े मज़े की चीज़ मैं कर सकती हूँ। क्या? कि यहाँ पे पानी की जगह आप हल्का सा ना करें एग्जैक्टली। आप इसका ट्रेस देखिएगा। ओके, जैसे हम रायते में करते हैं, क्या ज़बरदस्त रायता बनता है। मैंने कभी नहीं किया। रायते के अंदर आप करें, रायते के अंदर 7 अप ऐड करें। जो आप दही बड़े बनाते हैं, आप दही बड़ों के अंदर ऐड करें, उसका जो फेन बनता है वो बहुत अलग बनता है। हम अब बाकी जो है वो ब्रांड के जो ब्लैक फिजी ड्रिंक है वो हम यूज़ करते हैं कितनी सारी चीज़ें। मतलब आपने ये क्या करना है अभी ना, हम क्योंकि देखिए रमज़ान में तो हम सारे यहाँ पे इतने बिजी हैं कि हम लोग यहाँ से बाहर इफ्तार जो है ना नहीं कर पाते। ठीक है, मैं चले जब घर अगर लेट पहुँचे, जो घर के पूरा जो पकौड़े वाले पड़े होते मैं खा लेती हूँ। बट हम लोगों ने प्लान किया कि इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान, हाँ, हम एक दिन फिर स्पेशली क्योंकि हमने रोज़े रखने तो है, ठीक है, हम रोज़ा रखेंगे, फिर हम जाएंगे इनकी तरफ और ये कराएंगे हमारी इफ्तार। बिल्कुल आफ्टर रमज़ान, बिल्कुल उसमें आप यही करेंगी डालेंगी फिर ये ड्रिंक। ठीक है, यहाँ पे एक मुझे क्यों कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं ख्वाब से जाग जाए, ऐसा नहीं होने वाला, भाई बुला रही हैं। नहीं बुला रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये यहाँ पे बिल्कुल पेस्ट बन गए। अगर हम चाहें तो इसमें थोड़ा सा और हम पानी ऐड कर सकते हैं। हाँ। जब तक हम प्रोटीन शेक थोड़ी सी इसकी हम आज भी ऐसा कर लेते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आज हमारे पास टाइम है, कोई मसला नहीं है। ये हम वैसे भी स्लो करेंगे। ये अब हम प्रोटीन शेक बनाने लगे हैं। बिल्कुल, ये थोड़ा सा हम, यानी कि अगर आप डाइट कर रहे हैं तो प्रोटीन शेक आपके लिए, अगर आप नहीं करें मिलता तो लाल शरबत जैसे ज़बरदस्त हो जाएगा। मैं पकौड़े और लाल शरबत के साथ तो मेरी कोई अटैचमेंट है मुझे चाहिए होती है, मैं अगर ना हो तो कितना हो जाए ना। हाँ। अच्छा, यहाँ पे हम केले ले रहे हैं, ठीक है, तकरीबन, क्योंकि हम प्रोटीन शेक बना रहे हैं। अक्सर लोगों के तरावी पढ़ने से और रात में इबादत की वजह से बहुत ज़्यादा थकावट होती है, तो उनको होता है कि हम कुछ इस किस्म की चीज़ ना खाएं, हमें कोई ऐसी चीज़ मशरूब मिल जाए जो हमें ताकत भी दे। तकरीबन आपने 3 अदद केले हमने लिए हैं। इसके अंदर हम थोड़ा सा बादाम और पिस्ता, काजू ये हम ऐड करेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे हम शहद ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे हम मिल्क पैक क्रीम, मिल्क पैक दूध, ये मिल्क पैक दूध करेंगे। डेयरी सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है इनका, और ये बहुत गाढ़ा है,
बहुत ज़बरदस्त। हमने इसके अंदर शामिल किया दूध, ठीक है, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जामे शीरी। ओहो हो। ये ज़बरदस्त, आप चाहें तो मिल्क पैक की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर तो भैया आप सिर्फ यही पिए इफ्तार में और कुछ भी ना करें। कुछ भी नहीं। वो लोग ये ज़रूर कर सकते हैं, स्पेशली अगर फ्लाइट पकड़े हो, बहुत से लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उनके पास ही नहीं। हाँ, वो आराम से कर सकते हैं। और आज तो बहुत सारे बच्चों का वैसे भी रोजा होगा, जो मतलब विदा के हिसाब से जी जी सब बिल्कुल, बच्चे रोजा इतना रखते नेक हैं। दिन है, बिल्कुल बिल्कुल। रोजा खुशाइयाँ होती हैं बच्चों की, तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि आप इस किस्म का एक प्रोटीन शेक जो है वो आप दे सकते हैं। आयो वो शाहू हमारे मेकअप आर्टिस्ट भी देख रहे हैं, आज उनकी बेटी भी पहला रोजा रखती है, 8 साल की होगी। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना अच्छा लगता है ना कि वो बच्चे जो सामने बड़े हों, जब रोजा रखना शुरू करें। बिल्कुल। और पिछले दिनों आपके बेटे ने भी तो आपको सरप्राइज दिया, एकदम से रोजा रख लिया था, और पता ही और नहीं आज माशाल्लाह उन्होंने तीसरा रोजा है उनका, और वो सिर्फ 6 साल के हैं। माशाल्लाह। अच्छा, तो उस दिन वैसे क्या हुआ था मुझे बताएं, हम यहाँ पे चीजें पका रहे हैं, पता चला घर में बेटे ने रोजा नहीं, रखा। बल्कि मुझसे सावत ने कहा कि आपने तो कुछ जिक्र भी नहीं किया कि वो है, बल्कि लास्ट ईयर मैं यहीं समाज से ही मेरी बेटी की रोजा खुशाई थी, मदिया ने यहाँ उनकी रोजा खुशाई भी की थी, और वो भी आए, दोनों आए थे, और फिर उसके बाद हमने उनकी हॉल में भी की थी। लेकिन इस दफ़ा तो जो है वो ऐसा था कि कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल है कि वो शेर आया, वो रोजाना खाते थे, बैठते। 6 साल के बच्चा कितना बड़ा होता है, छोटा सा ही होता है, तो वो मैं तो रोजे में हूँ और खा रहे हैं, चिप्स भी खा रहे हैं, मैं रोजे में हूँ, वो दूध भी पी रहे हैं, मैं रोजे में हूँ तो मैं ये भी कर रहा हूँ। तो मैं कहती थी अच्छा खासा, मैंने ऐसे कहा कि अब तुम्हें रोजा रखवाऊंगी मैं। और बल्कि मैं जब मैं यहाँ से जा रही थी तो मेरी अम्मी की कॉल आई थी, तो मैं अपनी अम्मी से कहने की कि अम्मी अब इनको रोजा रखवाएंगे अगले साल से। तो हाँ, अभी 1 दाड़का रखवाओ, 2 दाड़का रखवाओ, फिर थोड़ा असर से मगरिब करवाओ, फिर उसके बाद जोहर से फिर असर करवाओ, मतलब उनको थोड़ा सा रूटीन मिला। जब मैं घर गई हूँ मदिया, तो बस वो एकदम ही बैठे हुए थे, एकदम मुरझाए हुए। मैंने कहा क्या हुआ, कुछ खाया नहीं तुमने? और वो अपनी दादी के यहाँ थे, तो कहेंगे नहीं। मैं कहा दादी ने कुछ नहीं खिलाया? तो कहेंगे नहीं, तो मेरे हस्बैंड ने बोला इसका रोजा है। बस आप यकीन करें कि उसके बाद वो मेरे पास 40 मिनट थे, मैंने अपने सास ससुर को बुला लिया, अपनी अम्मी अबू मेरे बेचारे बाद में आए क्योंकि वो दूर रहते हैं। तो बस वो जो हम मिठाई और हार और जो बस हम जो कर सकते थे, बस वो हमने किया है, और हमने जो है ना वो बस उनको रैप अप किया। पहला रोजा तो वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई, बाकी याद भी रह जाता है, और आजकल के बच्चे तो वैसे भी नहीं भूलते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं भूलते। और मुझे मेरा रोजा बहुत अच्छे से याद है। मेरे बच्चों ने तो बगैर बताए रोजे रख लिए, लेकिन मैंने तो बाकायदा, मेरी अम्मी ने तो रोजा रखवाया था मेरा। तो मैं अपनी नानी के घर पे थी, तो वहाँ पे उन्होंने रोजा रखवाया, तो मेरे लिए सहरी का भी एहतमाम हुआ, और उसमें भी मेरे करीब रिश्तेदार मौजूद थे। अम्मी का इकलौता पीस है ना। हाँ, मैं तो तीसरे नंबर का पीस अपनी अम्मा का। पहले वो भुगता चुकी, तीसरे बच्चे मुझे लगता है थोड़ा बहुत इंसान वो हो जाता है। नहीं मतलब पेरेंट्स करते हैं। हाँ नहीं, और किया तो था। और मैं माशाल्लाह से मैंने रखे रोजे काफी छोटी में। हाँ 9 साल से तो मैंने फिर कोई छोड़ा ही नहीं छोड़ा। हाँ, लेकिन उससे पहले भी हाँ मैंने रखे। अच्छा, यहाँ पे ये हम इमली का जो पल्प है वो हम लेंगे। आप देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही। हमदर्द के मसाले हमने यूज़ किए हैं। ये खट्टा होता है क्योंकि इसलिए इसका पूरा 1 कप हम भर के इसमें इमली का पल्प यूज़ करेंगे, और थोड़ा सा इसमें हरा धनिया। भाई कहा गया है कि चटपटा बनाएं इसको, और चटपटा बनाएं। जी जी। तो बस फिर हम इसमें थोड़ी सी शामिल करते हैं लाल मिर्च। ओहो हो, कुटी हुई लाल मिर्च नहीं, लाल मिर्च पाउडर यूज़ करना। अच्छा ठीक है। ये यहाँ पे मेरे पास मौजूद है सामान। अरे ये कितनी प्यारी छोटी सी देग है। यस, मैंने भी पिछले दिनों मंगवाई ये। हाँ ये मैंने पूरा एक वो सेट भी खरीदा, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये रमज़ान में इस लड़की ने मेरा बड़ा खर्चा करवाया है। ये अपने घर से कुछ चीज़ें ले आती हैं, फिर मैं कहती हूँ ओहो कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, फिर मैं भी ऑर्डर करके बैठ जाती हूँ। ये मुझे 3-4 चीज़ें बताती हैं, मैं फिर डिनर सेट ऑर्डर कर लेती हूँ। लेकिन चले भाई, अल्लाह पाक हम तमाम तर देखने वालों के यहाँ काम कर रहे हैं, जितने लोग यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, जितने लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें नहीं भी देख रहे, उनके दस्तरखान में बेइंतहा इजाफा करे। आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखिए आप, हो गया, सही मिक्स किया मैंने, बिल्कुल बेहतरीन। मैडम
ये आपने बहुत अच्छा मिक्स किया है और अब हम इसको डायरेक्टली, देखिए मैडम, अगर आप अपना रेस्टोरेंट दोबारा से खोलेंगे तो आपके पास एक हेल्प तो है यहाँ एक पे, हेल्पर है already, मेरे हाँ। पास। अच्छा, यहाँ बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, उफ, हो गया। ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे ये हम थोड़ा सा साफ सफाई भी कर लेते हैं, यस, ठीक है, ताकि आपका जो प्लेटर है वो बड़ा अच्छा लगे। कि थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, हम इसको थोड़ा सा सीधा भी कर लेते हैं। यूं करके रख लेते हैं ताकि हम जो कैमरा भाई हैं हाँ वो कैमरा सही से साहब, हाँ वो दिखा सकें। हाँ, ये रही हमारी रेसिपी आज की। यहाँ पे हम थोड़ा सा लेंगे हरा धनिया, जो कि हम इसके ऊपर इस पे गार्निशिंग करेंगे ताकि और जैसे खूबसूरत कितनी लगे। आसानी होगी कि साथ में हमारे वॉश बेसिन है, हमने फौरन हाथ भी धो दिए। बिल्कुल, क्या बात है। सो खट्टे आलू, अच्छा खट्टे आलू को किन किन चीजों के साथ खाया जा सकता है मुझे बताएं। मैं तो सहरी में फिर इसको ना वो उसका पराठे के साथ भी खा सकते हैं आप, इसकी फिलिंग भी कर सकते हैं। फिलिंग भी कर सकते हैं, आलू वाले पराठे भी हो गए। बच्चे सुबह अगर स्कूल जा रहे हैं और अब तो हर स्कूल में छुट्टी होगी, वो छोटे बच्चे जो रोजा नहीं रखते तो आप उसको सैंडविच बना के दे सकते हैं। बिल्कुल, इतना मजे का वो बने। आलू का आप सैंडविच बना के दे समोसा सकते हैं। बना सकते हैं, आप इसकी स्टफिंग कर सकते हैं, आप ब्रेड पकौड़े के अंदर यूज कर सकते हैं, आप इसको पराठे के साथ खा सकते हैं। और एंड में अगर आपको कुछ समझ में ना आ रही, आपके भी मेरे तो पराठे में के साथ में क्या खाऊं सहरी में, तो आप अंडा डाल दे पकड़ के, हाँ, आलू की भुर्जी बनती है ना। यस, तो वो भी बड़े आराम से। डिफरेंट डिफरेंट नाम है, चाहे कुछ खौकीना भी कहते हैं उसको। नहीं नहीं, वो आलू की भुर्जी होती है जो बनती है ना प्रॉपर, वो आलू की भुर्जी होती जिसमें अंडा भी होता है, है। अंडा भी होता है, वो बनता है, मुझे बहुत पसंद है वो। चले भाई, क्या बात है। ये देखिए, इसमें भी हम थोड़ा सा ऊपर से शहद ऐड कर देते हैं। ओए होए होए, मैं कहती हूँ भाई फिर यही पीना है आपने, सिर्फ यही नो पीना। पकौड़े, नो कुछ और। पिछले अच्छा कि हमारे टाइमिंग्स ऐसे ना, मैं बता रही हूँ ना कि लाल शरबत और पकौड़े की इतनी आदत होगी हुई है। तो एक दिन कहीं इफ्तार पे जाना था, तो वो खैर मैं इफ्तार के टाइम से नहीं पहुंच सकी, अलबत्ता खाने के टाइम पे जरूर पहुंची। बिल्कुल। बट मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे लिए फिर भी एक शरबत और पकौड़ा तो मिले। अच्छा, क्योंकि वो नहीं मिला ऑफ कोर्स, क्योंकि टाइम तो यही सारा गुजर गया जब वहाँ पहुंची हूँ। मुझे ना लगा कि आज मेरा रोजा ही नहीं है। हाँ, मुझे मजा नहीं। मैंने कहा वो हो ना लाल शरबत, ना मेरा पकौड़ा, ना मेरी चीजें। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, मिलके आपकी अफ्तारी को करती हैं, और बल्कि एक सब्र और शुक्र और इत्मीनान जो है वो देता है ये रोजा हमें। तो बस यही सारी चीजें हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम आपके लिए और भी चीजें लाएंगे। इतनी अच्छी चीजें बना रही है। मेरा 2 kg किसका रमजान में वेट बढ़ता होगा? लोग और वेट कम होता है, मेरा बड़ा 2 kg। नहीं, वेट बढ़ता है। कोई अगर ये कहता है ना, मैं तो लोगों को देखती हूँ लोग पतले हो रहे होते हैं, मेरा वेट बढ़ जाता है। नहीं, क्योंकि सहरी में पराठा जरूर खाऊंगी भाई, हमारी ट्रांसमिशन होती है, हमें पता है, एनर्जी चाहिए होती है, आपको बोलना बहुत बोलना होता है। बिल्कुल, हाँ ठीक है, बोलना होता है, भागना पड़ता है, तो सब चीजें करनी होती हैं। तो बस 2 kg वेट बढ़ गया 2 kg। और इसको अगर हम चाहें तो इस तरह बंद कर दें किसी को दिखाने के लिए। क्या बनाया आपने, दिखाएं? बस ये देखें, टन टन जबरदस्त। अच्छा मुझे बताइए, ये तो तैयारी की, अपने घर आप पहले दिन क्या बनाती हैं? अच्छा, पहले दिन मेरे घर हमेशा से ये होता है कि हम कोई ना कोई स्पेशल चीज़ बनाते हैं, जैसे कि कचौरी कीमा बना लिया, या अरबी पराठे बना लिए, या फिर हमने, क्योंकि नाश्ते का हमारा प्रेप होता है और प्रॉपर लंच होता है हमारे घर अरबी पे। पराठा हमने यहाँ क्यों नहीं बनाया अभी तक? क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि उसकी स्टफिंग होती है, फिर हम उसको बनाना पड़ता है। तो कुछ इस किस्म की चीज़ें हर साल यूनिक होती हैं कि आप अपने घर में, वैसे नॉर्मल पुलाव होता है और हमारा कोशिश ही होती है कि थोड़े चावल के आइटम और थोड़ा लिक्विड सालन टाइप ज्यादा हो, क्योंकि एकदम इतने सारे रोजे रखने के बाद ना आप एकदम खाने पे आते हैं दोपहर में, तो आपको एक तो पहले दिमाग आपका हाजिर नहीं होता। आपको मुझे लगता है कि जैसे कि हम मुल्क चेंज करते हैं, किसी घर पे किसी मुल्क में मौसम हवा चेंज होता है, तो हमारे अपना भी एक टेम्परेचर और अपने ज़हनी कैफियत मुख्तलिफ होती है। तो खाने की जो चीजें होती हैं वो थोड़ी सी हल्की ही रखनी चाहिए, और लिक्विड जैसे हो, बहुत मिर्च मसाले नहीं। अक्सर लोग बाकायदा भुने हुए सालन और कोरमे और ये बनाते हैं। जी जी, नहीं, ये नहीं कीजिए, क्योंकि आपका मैदा इस काबिल ही नहीं होता कि वो इतनी सारी चीजें करे, और उसके बाद फिर आप शाम तक आपके पेट में दर्द होता है, और आपकी नींद भी पूरी नहीं हुई भी होती है, क्योंकि आप पूरा वक्त पूरी रात मेहंदी लगी हुई होती है, घर में लोग काम हो रहा होता है। अच्छा मुझे बताएं, क्या आप वो खातून है जो कि चांदार सैलून में गुजारती हैं? नहीं। क्यों खवातीन ये सैलून में चांदार गुजार देती हैं? नहीं, मेरी कोशिश होती है जब हमें गैप मिलता है ना यहाँ पे, जैसे बनो सवा की आवाज का जिस दिन रिजल्ट होगा, तो उस दिन फिर मैं जो हूँ वो जाके जो भी मुझे अपनी डेंटिंग पेंटिंग करानी होती है, तो वो मैं अपनी मतलब आप हमारे बनो सवा की आवाज मिस करेंगी? बिल्कुल।
ठीक है, बस में टाइम नहीं होता। देखिए हुसैन इस लड़की को इस कदर प्यार है कि ये हमारा बनो समा नहीं, पूरा मैं बताऊं, हमारा पूरा महीना बाल ब्लो ड्राई होते हैं, हमारे बाल जो है वो स्ट्रेट होते हैं, तो इतनी मुश्किल हो जाती है कि तकलीफ हो जाती है, तो फिर हमें बेहतर ये होता है कि हम अपनी थोड़ी डेंटिंग बेंटिंग करा लीजिएगा जी। डेंटिंग बेंटिंग में छोटी सी जरा जनाब ब्रेक ले लूं, कमाल के खट्टे आलू तैयार हो चुके हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और होगा बनो समा की आवाज़, कहीं में जाएगा। अच्छा, और से लेकर से पहले मिल्क पैक क्रीम भाई, ईद आने वाली है, आपको पता होना चाहिए कि आपने मीठा बनाना है या आपने सेवरी कुछ चीज़ बनानी है। बिल्कुल, मिल्क पैक क्रीम आपके लिए यहाँ पे मौजूद है और आज हम आपको नई चीज़ क्या बनाना सिखा रहे हैं आपके ईद के दस्तरखान के लिए, ये देखिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको खुश आमदीद कहते हैं आपके हमारे फेवरेट सेगमेंट बनो समा की आवाज़ में, जिसमें हमारे जज साहिबान सबीर रहमानी साहब, हमारे साथ फसीउद्दीन सोहवर्दी साहब मौजूद हैं, जूरी मेंबर सलमान अवैस और जवेरी हमारे साथ मौजूद हैं, मैं और ज़ुबैर भाई तो आपके साथ हैं ही। और आज हमारा क्वार्टर फाइनल राउंड का है दूसरा दिन, बस 2 ही दिन है, 4 दिन लगेगा ना क्वार्टर फाइनल, तो 2 दिन और मजीद हैं, 4 दिन है। अच्छा, और कल का जो दिन था, कल वो बहुत आसान था, लेकिन कल उसके बावजूद हमारे साथ अच्छे पढ़ने वाले एलिमिनेट हो गए। टास्क बेस में तो ऐसे ही होगा, जब टास्क मिलेगा तो अच्छे पढ़ने वाले, जो तैयारी, जो जैसे हजरत ने फरमाया था कि पुराने कलाम जो नहीं सुन रहे बच्चे या कुछ खास मखसूस कलाम सुन रहे, तो वो शायद इस मुकाबले से जल्दी बाहर हो जाएंगे बनिस्बत उनके कि जो तैयारी कर रहे हैं, पीछे तैयारी करें, जो अपना रंग भी इसमें दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सभी भाई, अस्सलाम वालेकुम फसी भाई। अच्छा, कल देखिए, कल का अगर देखा जाए, आज भी टास्क इजी ही, हमने 2 नाते दी हैं, लेकिन उसके बावजूद अच्छे पढ़ने वाले समहाउ वो नहीं निभा सके, तो आपको क्या लगता है उसकी क्या रीज़न थी फसी भाई? मेरा तो ख्याल ये है कि जो अच्छा नात खान है वो हर अंदाज पढ़ सकता है और उसको पढ़ना चाहिए। खाली 2 या 3 कलाम के ऊपर आपकी रियाजत है तो वो आप तो अच्छे नात खान तो फिर नहीं है ना। अच्छा नात खान वही है जो सारे अंदाज पढ़ ले और अच्छे तरीके से पढ़ ले। क्योंकि देखिए ना, अगर हमने जैसे 2 नाते दी हुई थी, उसमें एक अंतरा एक साइड जो आपसे ज़्यादा अच्छी पढ़ी जा सकती है, उसमें ये भी नहीं था कि ये मखसूस उस पर आपने आना है। उसके बावजूद ये है कि बच्चे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं अपना पढ़ते पढ़ते, जब उनके सामने आती है ना दूसरी चीज़, वो कहते हैं ये भी पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं होता। हर चीज़ को पढ़ने से पहले आपने रचाना भी होता है, जहन में बिठाना पड़ता है हर जगह को और हर नोट को। अगर आप बहुत लाइटली लेंगे, मैं तो अच्छा पढ़ता ही हूँ, पढ़ दूंगा, तो आप गलती करेंगे, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। और ये है एक बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह। यहाँ आपने कोई भी गलती, क्योंकि ये 5-5, 6-6 आदमी एक साथ आ रहे हैं, 3 निकाले जाने हैं, तो जाहिर है किसी गलती पे ही निकाले जाएंगे ना। कोई इल्ज़ाम लगा के तो नहीं निकाल सकता आप। बिल्कुल कोई गलती सरसद होगी तो और ये गलती तो पूरा। अच्छा, ये जो आपने कहा ना एग्जाम की तरह, लेकिन आप देखें कि एग्जाम भी वो एग्जाम है जो आपको, जिसका क्वेश्चन पहले से बता दिया गया है, आपको पहले से बता दिया गया था कि ये 2 कलाम होंगे, इनकी तैयारी करके आना है। फिर भी अगर आपने तैयारी नहीं की है तो जाहिर है आपकी कोताही है। बिल्कुल जी। तो आज देखते हैं कि आज हमारे जो कंटेस्टेंट हैं, जो 5 हमारे साथ कंटेस्टेंट हैं, आज हमारे साथ कराची से 2 कंटेस्टेंट हैं, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से हैं, इनफैक्ट कराची से हमारे साथ 3 हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से 2, इस्लामाबाद से 2 हैं और कराची से 3। जी, तो अब आप इजाज़त दें, आप लोग इजाज़त दें, ज़ुबैर भी इजाज़त दें, बिस्मिल्लाह करते जी। हमारी जो आज की पहली कंटेस्टेंट है सबीहा फयाज इनका नाम है, इनकी आईडी है 06 और कराची स्टूडियो में ये हमारे साथ मौजूद हैं। सबीहा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है, माइक में ना मैं बस आपके लेकर आ रही हूँ और इसमें ये लीजिए, निकालिए एक, खोलिए और आपने ही माइक में बताना है कि इसमें क्या है, क्या लग रहा है कौन सी होगी। 2 पता तो है कि कौन सी, किसकी ज़्यादा अच्छी तैयारी, पहले मुझे ये बता दो। 2 नाते दी गई ना आपको? एक नात खाने के नाते मैंने तो दोनों की तैयारी की है अल्हम्दुलिल्लाह से। ठीक है, लेकिन किसकी ज़्यादा अच्छी तैयारी मुझे बताओ? दोनों की बराबर। दोनों की बराबर है। ये पढ़ो, कौन सी नात आई है? अपनी रहमत के समंदर में। माइक में बोलो। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। चले जी, बिस्मिल्लाह। तेरी तैयारी अच्छी है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बिस्मिल्लाह। अपनी रहमत के समंदर
अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। बेटे का ना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। ख्वाहिशे ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा, ख्वाहिशे ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा, ख्वाहिशे ज़ात बहुत साथ दिया है तेरा। अब जिधर मेरे मोहम्मद है उधर जाने दे, अब जिधर मेरे मोहम्मद है उधर जाने दे। बेटे का ना हूँ अज़ल से, मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी ज्यूरी मेंबर, सबसे पहले तो आप बताएं, इससे पहले कि मैं जज साहिबान पे जाऊँ। सबिहा ने आज तैयारी अच्छी की है और आस्ताई बहुत अच्छी बोली इन्होंने, उसमें 2-3 जगह भी इन्होंने अच्छी कहीं, लेकिन अंतरा बिल्कुल बिखरा हुआ कहा जिसमें रचाव नहीं था। आधा सुर या एक थोड़ा सा नीचे रखती ना तो बहुत आराम से ये इसको नहीं, निभा सुर लेती का है। इशू नहीं था, उन्होंने निभा दिया था, लेकिन उसके अंदर जो रचाव होना चाहिए था ना, जो पॉसेस के साथ उसका एक जो फील था वो थोड़ा सा मिसिंग था। सलमान जब ये ऊपर सुर पे पढ़ती है ना तो ये आवाज़ दबाना शुरू कर दबाने देती है। ये खुल के नहीं पढ़ पा रही थी, खुल के नहीं पढ़ती। अंतरे में इन्होंने जो ना वो खुल के जो इनका अंग है ना, जिस तरह इन्होंने लास्ट 2 परफॉर्मेंसेस थी वैसा नहीं था। अगर ये बिल्कुल और थोड़ा सा नीचे रखती ना, ये आराम से कर सानी लेती। की अस्थाई के सानी में भी जब जैसी नोट लेती थी तो बेसुरा आती थी फौरन, उसमें थोड़ी तो सी हल्का सा माइनर सा थोड़ा सा डिफरेंस। ठिकाना एक पूरा भरपूर बोलती तो उसका भी एक अपना एक वो है ना रंग है ठिकाने का, एक ठिकाना कह रही थी तो वो भी बुरा लग रहा था। देखिए जज साहिबान, वैसे आपको कैसे लगी? आप भी बताएं। मुझे तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लगी। मैं तो वाकई महव हो गया था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। सबसे अच्छा इन्होंने ही सुना है। मैं सही बता रहा हूँ, मैं तायद करता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा। वो तो सुर की बारीकी में चलेंगे ना। बिल्कुल कोई खामी नहीं निकालूंगा, मेरे नज़र बहुत अच्छा पढ़ा है। ठीक, आहिस्ता आहिस्ता सीखता जा रहा हूँ। बहुत अच्छा। फसी भाई की शागिर्दगी में आप सभी भाई गैर जरूरी जगह लगाने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने नहीं लगाई। सही। सभी भाई सबिया ने बहुत अच्छा पढ़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि टास्क है। हो सकता है इन्होंने ये नात पहले ना पढ़ी हो सकता पढ़ी हो, लेकिन दोनों सूरतों में इन्होंने जहाँ से शुरू किया है उसी वक्त से उसकी जो एक रिदम है उस नात का, वो बिल्कुल बायनी वैसे ही आ रहा था जैसा उसका होना चाहिए। अंतरे में याद रखो बेटा कि किसी मर्दाना और पहाड़ी आवाज़ में और किसी कोमल आवाज़ में फ़र्क होता है। आप दोनों से एक तरह का अंतरा एक्सपेक्ट करेंगे तो वो बिल्कुल वैसा मुमकिन नहीं होगा, लेकिन जिस आवाज़ के लय में, जिस तरन्नुम में, जिस कोमलता के साथ इन्होंने अंतरा ले लिया है वो बहुत कमाल है। इसलिए कि आपके जहन में एक पहाड़ी आवाज़ है और खुली आवाज़ है, तो आप एक उस आवाज़ को किसी दूसरे आदमी की आवाज़ में देखेंगे तो वो वैसे नहीं होगी। कामयाबी कब है? जब करीब करीब आ जाए। तो बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने, बहुत खूबसूरत पढ़ा माशाल्लाह। सही, चलो ठीक है। ये तो थी हमारी आज की पहली कंटेस्टेंट सबिया। आप अपनी नशिस्त पे तशरीफ रखें। जी, तो अब अच्छा आगाज़ हो गया। मुझे अच्छी बात ये लगती है कि जी लड़कियां आ रही हैं। जी,
लड़कियों का आना बड़ा इंपॉर्टेंट है. अच्छा मैं जूरी मेंबर्स की इसको भी अंडरस्टैंड करती हूँ, बिकॉज वो छोटी छोटी चीज़ भी उनके लिए मैटर करेंगी, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे हम उनसे कहेंगे भाई आपने नाथ खान से लेके किए थे, तो वो शायद उनसे थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि उनको ओन ज़्यादा करते हैं. तो जैसे ना कि हमारे घर वाले जब ओन ज़्यादा करते हैं तो हमारी ज़रा गलती खामियां उनको ज़्यादा नज़र भी आती हैं. नहीं, मुझे खुशी इस बात की है कि ये लोग भी बहुत सेंसिटिव हैं सुनने के मामले. जी. और ये जहाँ इन्हें कुछ महसूस होता है ये हमसे ज़्यादा सख्ती से देख रहे हैं. वजह क्या है? क्योंकि ये लेके आए यहाँ से हम सवाल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम ज़ाहिर है कि सारी दुनिया में सुनते हैं और मुख्तलिफ आवाज़ें सुनते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि कौन क्या कर रहा है. तो हम इनकी दिलजोई भी कर लेते हैं और कहीं कहीं इशारा भी कर लेते हैं. आप लोग असातिज़ा हैं. अच्छा जी, हमारे आज के दूसरे कंटेस्टेंट में चाहूँगी सलमान साहब के पास जी. अच्छा, ये इनके पास आप ले जाइए. अच्छा जी, हमारे आज के दूसरे कंटेस्टेंट हैदराबाद से जनाब ये आए हैं और अली रज़ा का नाम है, आईडी का 07. अपनी रहमत के समंदर में वही अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दें. चले जी, देखते हैं अब ये कैसे पढ़ते हैं. और जब सेम कलाम आ जाता है ना तो ज़रा आपने अपने तरीके से अंदाज से अली रज़ा बिस्मिल्लाह. अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे. अपनी रहमत के समुंदर में उतर जाने दे. बेठिकाना शहीदों को भी रश्काएगा। मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्का मौत पर मेरी शहीदों को भी रश्का आएगा। अपने कदमों प्यारे कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। अपने कदमों से लिपट कर मुझे मर जाने दे। वाह, इसलिए जी मुझे तो आज कोई मुझसे भी तो पूछे कैसा लगा? हम पूछे थे, आप सब मिल गए। बदिया जी आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत लगा, दोनों का बहुत डिफरेंस चल। मैं अगर आई डोंट नो ऑन एयर मेरी आवाज़ चलेगी कि नहीं चलेगी, उनमें वो जब वो उठाती थी थोड़ा सा वो गायकी वाला उसमें आ जाता था। इनका थोड़ा सा मुझे उन्होंने बहुत प्यारा पड़ा, इनका बहुत प्यारा था। इनका थोड़ा सा वही फील वाला डिफरेंट था, वो इनकी नात वाली टोन थी, उनकी थोड़ी सी वो गायकी वाली वजह मुझे घर जाने दे। तो वो आई डोंट नो, मुझे आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आप लोग ज़्यादा बारीक बारीक गलतियाँ निकालते हैं, वो ओवरऑल सब कुछ चीज़ देख लेते हैं। अच्छा पड़ा मेरे लिहाज से तो अच्छा। इन्होंने 2 दफ़ा एक अंतरे में 1 दफ़ा बेडार करने की कोशिश की थी, और 1 दफ़ा जब उतार रहे थे मेरे ख्याल में अस्थाई में दोबारा बेडार किया, तो वो ज़्यादा खूबसूरत था। ना कि जो अंतरे में उन्होंने ट्राई किया था वो थोड़ा सा आउट ऑफ द टोन हो गया था। वो लेकिन वापस ले आए बहुत अच्छे से, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंस, तो वो अगर ये ना करते तो शायद अच्छा था। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा पड़ा, बेहतरीन पड़ा। वो छोटी सी गलती, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं। जी सभी भाई
इजाज़त। जी सर। बेटा ये आखिर में क्या किया? बिल्कुल ही बाहर हो गए। एंडिंग क्या की? इतना खूबसूरत पढ़ते हुए आए। सर वो बिडार है ना जो हमारी समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैं समझा बिल्कुल उनसे कह बिल्कुल। रहा हूँ आप इसके साथ आपको और मुझे दोनों को इसके साथ तो आप ही है ना। बेटे देखो, जो चीज़ कंट्रोल में है नहीं है, 50% है, कोई ज़रूरत नहीं करने की उसे। जैसा पढ़ रहे थे वैसा होता है। बहुत अच्छा पढ़ा, उसका पूरा माहौल बनाया आपने। लेकिन बाज़ जगहों पर जब हम एक्स्ट्रा कोई काम करना चाहते हैं बेटे, अगर उसमें ग्रिप कमज़ोर हो कभी मत करो, मुकाबले में तो कभी भी मत करो। आपके फ़न का इजहार हो जाए नहीं हो फिर एक ऐप बन जाएगा। जितना भरपूर ये कलाम था उसकी एंडिंग उतनी जाके वीक हो गई, एकदम उतरने की क्या ज़रूरत थी? इसमें आज थी ना। बाकी बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह, बहुत बासलाहियत, अच्छी तरह निभाया। बस लेकिन मसाइल होते हैं बाज़, बहुत अच्छा पढ़ा। देखिए मैं तो 2-2-4 का कायल हूँ। अब ये शुमाल से मगरिब में क्यों चले गए, मगरिब से मशरिक में क्यों आ गए, जो जहाँ पे मुझे लगा कि वो बेडार में चले गए वो मैं समझता हूँ बेसुरे हो गए। बस मेरे लिए 2-2-4 है। ये नहीं बताया 2-2-5 नहीं कैसे है, आपने ये नहीं बताया उन्होंने पढ़ा नहीं। ये जो एंडिंग मुझे अच्छी नहीं लगी उनकी। वो जो एकदम क्रैश लैंडिंग, एंडिंग अच्छी नहीं थी, वैसे सही था। बीच में एक जगह और अंतर में भी उन्होंने वही काम किया है। ओके, जो जिसकी इस्तेलाह ये इस्तेमाल करते हैं बेडार। वो तो आज तक मुझे समझ नहीं आया। बेडार हम तो अभी तक नहीं समझे। आज इफ्तार में बिडार को डिस्कस भी किया, बिडार को डिस्कस करेंगे। चलो जी रिजा भाई, बहुत प्यारा पढ़ा आपने। अब हम जरा अपने नाज़रीन को लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ पर मुंतज़र है हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट मोहम्मद खुतामा साबरी, जिनकी ID है 08। सो आप निकालिए खुतामा के नाम का, तो वो बाकी दो की वो निकालेंगे। अच्छा मैं निकालूं? आप खुतामा, जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं निकालता हूँ। बस अल्लाह में ये ना आए जो उन्होंने पढ़ा अभी। मेरे कमली वाले की वही है। हाँ, मेरे कमली वाली की। वाह जी भाई वाह। जी बिस्मिल्लाह, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। चले, आपकी तैयारी है खुतामा? जी जी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कीजिए मेरा भाई। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, मेरे कमली शान ही निराली है, दो जहां के दाता हैं, दो जहां के दाता हैं, सारा जग सवाली है, मेरे कमली वाले की खुल्द जिसे कहते हैं, मेरी देखी बाली है, खुल्द जिसे कहते हैं, मेरी देखी बाली है, सब्ज सब्ज गुंबद है, सब्ज सब्ज गुंबद है, और सुनहरी जाली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। बहुत जबरदस्त। खुतामा जी बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन
अगर आप दो साझा बैठे हैं, वो जब ये कह रहे थे ना मेरे कमली वाले की, इतना सुर नीचे लिया हुआ था कि की इनको मुश्किल से अदा करना पड़ रहा था, मुझे ऐसा लगा बहरहाल, लेकिन बहुत अच्छा पड़ा सुर। अगर आधा सुर भी ऊपर ले दे तो ये की और शार्प हो जाता। बेटे बोलने दो पहले, बात पूरी आ जाए ताकि ये शार्प हो जाता अगर सुर आधा और ऊपर ले लेते, या एक सुर, क्योंकि कुत्तामा को हमने पहले भी सुना है और इनका जो स्केल है वो बहुत अच्छा है। ये नीचे क्यों बोल गए मुझे नहीं समझ में आया, अगर ये ऊपर बोल देते तो ज्यादा इम्प्रूव पड़ते और इम्प्रूव हो जाता। बाकी सबका अपना ओपिनियन है। सलमान, खुत्तामा की जो रियाजत है ना वो है बेस की बनी हुई। अब वो नीचे लें या ऊपर लें वो निभा जाते हैं। अल्लाह ताला ने उनको सलाहियत दी दोनों चीज़ों में। उन्होंने जो स्केल लिया था उसी में उन्होंने निभाया और बेहतरीन अंदाज से निभाया। गोया कि एक आध जगह पे उनकी मूर्खी में थोड़ा सा वो स्लिप हो गए थे लेते हुए, अदरवाइज उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। बहुत अच्छा कलाम पढ़ा, बस जिसकी सलमान भाई ने निशानदेही की, मुझे लगता है ये स्केल इनके लिए बेहतर था। बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने इस पर। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जो इनकी जो आवाज़ है उसके लिहाज से एक सुर ऊपर अगर जाते तो बहुत अच्छा पढ़ सकते थे इसी कलाम को। इन्होंने इसको नीचे रख के पढ़ा और जिसकी वजह से जो वो रचाव होना चाहिए था इस कलाम के अंदर वो मुझे महसूस नहीं हुआ। यानी कि इस बात पे आप उनसे मुत्तफिक हैं वैसे, जैसे वैसे का एक स्केल ऊपर। इत्तेफाक है कि आज मैं मुत्तफिक हूँ। वैसे हम आपको मुबारक, आज 23 रमजान मुबारक का दिन है, मुबारक दिन, मुबारक घड़ी है ये, मैं नोट नहीं कर ली। शुक्र है तुम फजूलियात के दायरे से तो बाहर। बेटे कुत्तामा, ये नात आपने पहले पढ़ी है कभी? जी नहीं। जी नहीं। आप जब भी नात शरीफ पढ़ते हैं तो इसी तरह गर्दन नीचे करके माइक की तरफ देखते हुए पढ़ते हैं? जी नहीं। बेटे बहुत अच्छा पढ़ा आपने, और एक जगह सिर्फ जो है उसे मैं बेसुरा तो नहीं कह सकता, लेकिन जब हम कोई जगह लेते हैं तो उसमें एक आध जगह हमसे इजाफी लग जाती है जो अलग नज़र आती है। बाकी आपने अगर ये कलाम पहले नहीं पढ़ा और आज पढ़ा है तो बेटे बहुत अच्छा पढ़ा है, माशाल्लाह, जिंदाबाद। मुबारक हो भाई, कुत्तामा आपने बहुत प्यारा पढ़ा और जजेस भी जो है वो मुतमिन नजर आए। एक वो बात की कि अगर आप एक सुर थोड़ा ऊपर ऊंचा होते तो वो और ज़्यादा बेहतर हो जाता, पुरलुत्फ हो जाती और ज़्यादा आपकी जो है। अब टाइम है तो हम अपने पे आज की नहीं ब्रेक का टाइम है। ख़वातीन हज़रात, टाइम ख़त्म हुआ इस सेगमेंट का। मैंने बताया इस वाले, मतलब अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस ज़रूरी है ना, जाएंगे वापस आएंगे। फिर हमारे कितने पास कंटेस्टेंट हैं? दो हैं, एक कराची से होंगे और एक होंगे इस्लामाबाद से। अब देखते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, वो कैसा टास्क निभाते हैं। ब्रेक के बाद जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको कहते हैं एक बार फिर से खुश आमदीद। और अब बारी है हमारे चौथे कंटेस्टेंट की। कराची स्टूडियो से उन्होंने ज्वाइन किया है, नाम इनका तंजील आफाक और इनकी आईडी है 09। तो जनाब इनके पास ले जाइए। तंजील माइक में बताइएगा। मेरे कमली वाली, मेरे कमली वाले, मेरे कमली वाली, ठीक, मेरे कमली वाले की शान है। ठीक। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। दो जहां के दाता है, दो जहां के दाता दाता है, दो जहां के दाता है। ज़ात बेमिसाली है, हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, हर तरफ मदीने
माशाल्लाह माशाल्लाह जी। कैसा पड़ा जी रिमेंबर से? मुझे जब शुरू किया है तो मुझे ऐसा लगा जैसे इनका गला शायद ख़राब है या बहुत ज़्यादा रियाजत करने की वजह से गला डिस्टर्ब हो गया है। अंतरा तो बहुत अच्छा निभाया इन्होंने, लेकिन अस्थाई मुझे लगा थोड़ी सी डाउन बोल गए। ओवरऑल तंजील हमेशा अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन बस वो अस्थाई में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा डिले हुआ है। वन लाइनर सभी वैसे ले लूँ वाला जुमला बस निभा दिया इन्होंने। ठीक, चले वन लाइनर। नहीं देखिए, असल में ये जो अंदाज अब पढ़ते हैं ना, उनके लिए ये कलाम पढ़ना जो है ना, वो इसमें ज़्यादा क्या वेरिएशन वो ला सकते हैं, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे वो, जो भी बेचारे कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात वो फिर उससे आउट भी हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये कलाम शायद मेरा ख्याल है पहली दफ़ा पढ़ा, ऐसा ही लग रहा है। तो जब पहली दफ़ा पढ़ा है तो इसके अंदर इतनी कोई चेंजिंग आ भी नहीं सकती। ठीक, लेकिन इन्होंने फ़कीरों को जो है ना वो छोटा काफ पढ़ा, छोटे काफ से मिला दो फकीरों। अच्छा, बातें सारी हो गई हैं बेटा। मसला यह है कि क्या गला खुश्क है बहुत ज़्यादा। अब ये क्या होता है कि इस वक्त जब इस कैफियत में हो ना गला, तो जो अंतरा जब हम उठाते हैं तो वो अपनी खुश्की की वजह से एक अलग टच देता है, जिसमें खुरदुरेपन का, खराश वाले स्टाइल का एक रंग आता है। वो क्या करता है, पढ़त को ख़राब करता है। इसीलिए हम गले को रेस्ट देते हैं उस वक्त जब हमें मुकाबले में पढ़ना हो या परफॉर्म करना हो किसी जगह, एक आध दिन पहले कर लें जो करना, उस दिन बिल्कुल गले को इस्तेमाल मत करें, ताकि गला बिल्कुल नॉर्मल हालत में हो और उसका हर नोट अपनी अपनी जगह पर आता हो। पढ़ा आपने बहुत अच्छा, अंतरा बेपना अच्छा लगाया। इस कलाम को सादा ही पढ़ा जा सकता था, आपने सादा पढ़ के बहुत खूबसूरत पढ़ा, लेकिन एक तो फ़कीरों वाला मसला दो जगह है आपके साथ, और दोनों जगह आपने उस लफ्ज़ को ये इसके माने पहना दिए। ठीक है, ठीक। चलें, ये थे हमारे प्यारे कंटेस्टेंट तंजील आफाक। अब हमारे आज के आखिरी कंटेस्टेंट इस्लामाबाद स्टूडियो से फतेह जंग से इनका ताल्लुक़ है, हाफिज़ मोहम्मद अली रज़ा, जिनकी ID है 10। तो मैं चाहूँगी कि ये जनाब मेरे ख्याल में जवेरिया आप निकालिए। हाँ, मेरे कमली वाली, ये देख भी लें दफ़ा, मेरे कमली वाली। चले बता दें जी, बता दें। मेरे कमली वाले की। जी अली रज़ा, कलाम आपने सुन लिया, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, दो जहां के दाता हैं, सारा जग सवाली है, दो जहां के दाता हैं, सारा जग सवाली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, क्योंकि उन
उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद सवाली है। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। क्या कहने भाई, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह 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 भाई, कमाल कर दिया भाई जी। वक्त पूछना पड़ता है चीफ जस्टिस भाई। सुभान अल्लाह बेटे, गला आपका भी खुश था, लेकिन आपने माशाल्लाह उस बात को तासुर दे दिया कि पढ़ने वाला पुराने कलाम में भी उसी चलत में रहते हुए अपने अंदाज़ को शामिल कर सकता है, उसमें अपने फ़न का इजहार कर सकता है और बहुत खूबसूरती से कर सकता है। हालांकि आपके गले में भी खुश्की थी, लेकिन आपने उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसके साथ साथ हर नोट को, हर ठिकाने को जो पढ़ने का है उसको रचा के दिखाया। बहुत सारी वेरिएशंस डाली। ये उसी आदमी में होता है जिसमें एतमाद भी हो और जिसका गला भी उसका साथ दे रहा हो। शाबाश। अंतरे में एक दो जगह ये ऊपर है वो चीख लगी, वो आवाज़ की चीख महसूस हुई। हालांकि अगर इतने ऊपर ना जाते तो बहुत खूबसूरत पढ़ रहे थे, ये मैंने महसूस किया। सही, चले। अच्छा जी, ये मोहम्मद अली रज़ा थे आज के हमारे आखिरी कंटेस्टेंट। इनका ताल्लुक़ है फसी, ने बहुत प्यारा पढ़ा। अच्छा, अब इससे पहले कि ब्रेक पर जाऊँ, मैं चाहूँगी फसी भाई रिक्वेस्ट है जी आपसे ना। जब से उनकी निगाहें करम हो गई, जिंदगी में मेरी इनकलाब आ गया। छट गए गम के बादल लबों पर मेरे, जब भी इस मेरी सालत माब आ गया। छट गए गम के बादल लबों पर मेरे, मुश्किलें हल हुई, आफतें टल गई, मुज़तरिब दिल को तस्कीन का सामा मिला। मैंने घबरा के उनको पुकारा ही था, सामने मेरे रहमत का बाब आ गया। मैंने घबरा के उनको पुकारा ही था। कैसे ताज़ीम उनकी बजा लाऊं मैं, किस करीने से तौक़ीर उनकी करूं। था इसी सोच में दफ़अतन सामने मेरे दस्तूरे उम्मुल किताब आ गया। था इसी सोच में दफ़अतन सामने, जिसने उन पर पढ़ा सिद्क़ दिल से दुरूद, जिसने भेजा महब्बत से उनको सलाम। मुस्तफ़ा ने उसे आप खुद सुन लिया, मुस्तफ़ा का उसे खुद जवाब आ गया। मुस्तफ़ा ने उसे आप खुद सुन लिया, मुस्तफ़ा का उसे खुद जवाब आ गया। रात मेराज की काबा कौसैन पर, अल्लाह अल्लाह मंजर मुलाकात का।
روبرو ان کے وہ بے خطر آ گئے، سامنے ان کے رب بے حجاب آ گیا، روبرو ان کے وہ بے خطر آ گئے، تذکرہ ان کی روئے منور کا جب اہل دل کی زبان سے ہوا اے ریاض، روشنی اس کی یوں دل میں اتری میرے، جیسے اس میں کوئی آفتاب آ گیا، جب سے ان کی نگاہ کرم ہو گئی، زندگی میں میری انقلاب آ گیا، چھٹ گئے غم کے بادل لبوں پر میرے، جب بھی اس میں رسالت مآب آ گیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریک کے بعد ہم آپ کو کہتے ہیں ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور اب وقت ہو گیا ہے کہ کوارٹر فائنل راؤنڈ کا جو دوسرا روز ہے اس میں ہم اپنے ریزلٹ اناؤنس کریں۔ آج ہمارے ساتھ 5 کنٹیسٹنٹ تھے، اور ان میں سے 3 جو ہیں وہ ایلیمنیٹ ہو جائیں گے اور 2 جو ہے وہ مقابلے میں آگے چلے جائیں گے، اور یہ سب سے زیادہ مشکل وقت ہوتا ہے کیونکہ اتنے اچھے نعت خوان ہمارے پاس ہیں، اور ٹاسک میں وہ کوئی نہ کوئی غلطی کرتے ہیں کہ پھر دکھ ہوتا ہے کہ وہ یہ غلطی کر دی لیکن ہیں بہت اچھے، لیکن مسئلہ یہی ہے نا، ٹاسک دیں گے، ٹاسک میں غلطی کریں گے وہیں تو آپ مقابلے سے آؤٹ ہوں گے، کیونکہ یہ فارمیٹ ہے کہ مقابلے سے آؤٹ ہونا ہی ہے۔ آپ لوگوں کی اجازت ہو تو پھر میں آج کا رزلٹ اناؤنس کروں۔ ہماری آج کی پہلی کنٹیسٹنٹ کراچی اسٹوڈیو سے، نام سبیحہ فیاض، آپ کو فصیح بھائی نے 8 مارکس دیے ہیں اور آپ کو سبی بھائی نے بھی 8 مارکس دیے ہیں، آپ کا ٹوٹل بنتا ہے 16۔ ہمارے آج کے دوسرے کنٹیسٹنٹ کراچی اسٹوڈیو سے، حیدرآباد سے ان کا تعلق، فصیح بھائی نے آپ کو 7 مارکس دیے ہیں اور 6 مارکس آپ کو دیے ہیں سبی بھائی نے، آپ کا ٹوٹل بنتا ہے 13۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے محمد خطامہ صابری، فصیح بھائی نے آپ کو 7 مارکس دیے ہیں اور سبی بھائی نے بھی آپ کو 7 مارکس دیے ہیں، وچ میکس یور ٹوٹل 14۔ کراچی اسٹوڈیو سے تنزیل آفاق، فصیح بھائی نے آپ کو 7 مارکس دیے ہیں اور 6 مارکس دیے ہیں آپ کو سبی بھائی نے، آپ کا ٹوٹل بنتا ہے 13۔ اور ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے آج کے آخری کنٹیسٹنٹ، جس سے واضح بھی ہو جائے گا کہ کون سے آج کے 2 ایسے کنٹیسٹنٹ ہیں جو کہ مقابلے میں آگے جا رہے ہیں، حافظ محمد علی رضا، آپ کو فصیح بھائی نے 8 مارکس دیے ہیں اور آپ کو سبی بھائی نے 9 مارکس دیے ہیں، آپ کا ٹوٹل بنتا ہے 17 کا، یعنی کہ آج کے اس مقابلے میں سب سے ہائیسٹ مارکس محمد علی رضا آپ کے ہیں، پھر سبیحہ فیاض آپ کے ہیں، پھر محمد خطامہ کے ہیں، اینڈ دین علی رضا اور تنزیل آفاق آپ کے ایک جتنے مارکس ہیں۔ آپ تمام تو لوگوں کو بہت مبارک اس لیے کیونکہ آپ لوگ پیارے نبی کی نعت پڑھنے والے ہیں، تو اعلیٰ مقام تو آپ لوگوں کو آلریڈی ہے، لیکن اس مقابلے میں جو آگے جا رہے ہیں وہ ہیں سبیحہ فیاض اور ساتھ حافظ محمد علی رضا، آپ کو بہت مبارک ہو، اور آپ تمام لوگوں کے ساتھ جائے گا کرشی جامشی کی جانب سے گفٹ ہیمپر۔ اب جناب میں چاہوں گی، اور ساتھ میں سکون کے جانب سے بھی آپ کے ساتھ گفٹ ہیمپر جائے گا۔ اب جناب کیونکہ آج ہے اتنا زبردست بابرکت دن، تو آج زبیر بھائی بھی نذرانہ عقیدت نعت پیش کریں گے، ماشاءاللہ۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، وہ شرح احکام
حق تعالی وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب آپ حالہ، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ نقطہ بھی خط بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، وہ آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبیر، بہت اچھی کوشش ماشاءاللہ، بہت پیارا، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے جی۔ اور اب وقت ہو گیا ہے آپ لوگوں سے اجازت لینے کا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، شادری آبادری اپنی دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی تو کل ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔